हाँ, तो अब सर मुझे बताइए क्या आज डिस्कस करना है। तो आपको कोई जिनको जिनको जो डाउट्स हैं या कोई टॉपिक्स हो तो वो मुझे सर बता एक, दीजिए। एक बार टोटल पीईसी वाई डिफरेंस पे एक बार समझा देना एक बार। ठीक है, टोटल पीसीओआई एक है। और अभी किसी ने कुछ पूछा था, वो क्या था? प्रीमियम सर जो डिकेट। मैं सर जो वी बैक होता है वो एक दिन के लिए होता है। हाँ, राइट। सर, और एक दिन के लिए मैक्स पेन भी होता है। हाँ, इन दोनों में सर क्या अंतर है? ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं, ये भी डिस्कस करते हैं। सर डिस्टरबेंस बहुत है किसी की इसमें, बताइए। ओके, ठीक है, वीवैप मैक्स पेन भी डिस्कस करते हैं। ये दो हो गए। और कुछ? और कोई टॉपिक्स? एनी मोर टॉपिक्स एनीबडी वांट्स टू डिस्कस? The premium decay tool. प्रीमियम डीके, या प्रीमियम डीके इज वन, फाइन। जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी नोट दिस डाउन, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक मिनट, जस्ट वन मिनट। मैक्स पेन थर्ड इज प्रीमियम डीके। ओके, yeah, I'll first go to total PCOI diff. All okay. I got one more request in chat. IV, all IV. IV chart related. Okay. 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 Total PCOI. I mean, I have this. There are many videos on this. I have discussed this very much in detail. So the main idea here is uh, the start of the day. You need to wait for some time and make sure over here columns selected are, you have selected this diff column. This percentage is not, I mean, you can keep it, but these two columns are very important. CEOI change and PEOI change. This is total for the day, total CEOI change, total PEOI change for the whole day. That means the total OI change from previous day's close. So that is this, that is this. And this is for 3 minutes. Whatever time interval you have selected, this is all 3 minutes data. This is all 3 minutes data. So these two columns are very important, and this column is very important. PCR, of course, PCR, you can keep PCR, OI change, you can keep. All these are useful in analysis. So at the start of the day, what you need to do is the main focus has to be this to begin with. So the diff, what is this diff? Whether it's positive or negative. So just give it, say, until about 9:30 or so. So first, let it settle down, let the market settle down for 15 minutes or so. And then whatever this uh, color is, this will probably tell you, I mean, this should not be too low. If it is something like this, then it's not meaningful. So it has to be significant. Some significant value has to be there. The difference between call and put has to be significant. I mean, here it's almost same. See, this difference is this value minus this value. So total POI change, PEOI change minus CEO, total CEOI change for the day. It is this value for this particular 3 minutes, this difference. So this is negative. This means it is bearish. And then what you need to do is you need to start, once you know this is bearish, okay, that is the direction in which you will start looking for confirmations.
I mean, this is not like this is only the sentiment. This is the sentiment of the market, how traders are positioning themselves in the market. So this will not give you the price trend because price trend can go see even if this is negative, you'll see that price has crossed above VWAP. This green means price is above VWAP. Red means below VWAP. So it is very close to VWAP. It is going above VWAP, coming down below VWAP, going above VWAP for some time, then coming down. So it's not clear. It will get clear when there is a significant unwinding. Whenever, see the concept, let me tell you the concept behind unwinding. What is going to happen is there are going to be positions on both sides, call and put. So now, once market starts to go up, once it crosses a particular strike, then whoever has sold at that strike, if price goes above that strike, then their position will start getting into loss. So the pressure gets built up. So as price moves up, then whoever has sold on the call side, pressure starts building up for them and their positions start to go into loss. So they will look to either roll up the position or exit the position or whatever. And that will show up as unwinding. Unwinding is negative number in this. If price is going up, then you will see this as a negative number. And for index, I have mentioned that if you're looking at minus 1%, then that is significant. If you are not seeing minus 1% on either side, either call and or put side, then it is not that significant. When you see minus 1%, it is significant. On the call side, if call positions or call OI change decreases by minus 1%, then it means that lots of positions are getting they are getting closed. And they get closed only because there's too much risk on that side. The traders think that the market will go more up and then they'll lose a lot more on the call side, whatever their call positions are. So when you see unwinding, good serious unwinding, that is 1% or so, approximately 1% or so, or more, then that means on that side the market can go. So that is probably a lot more clear signal. And once you see this, then you need to, of course, make sure price has started to go that side. Because whatever OI signals you get, those are just indications, they are sentiments mostly. So it is not a signal to take a trade. You need to take a trade only when the price also confirms. OI has to confirm, then price also has to confirm. But 1%, until you see 1%, the move is more or less sideways. If you see this is like the values are quite small. Here they are getting a little bit big, but still you need to see if the market is negative. This is what is this OI change difference is indicating. But until you see 1%, minus 1% move, then it is still not that negative. Here, I would say at least it is getting closer to minus 1%. So it is a little bit negative. But until you see 1%, it will not be negative. Okay. So and until you see minus 1%, this will be mostly sideways. So if you see there is no clear direction for this day. If you see from the whole day, it was more or less sideways. So if you get a trending move, you will get a clear signal of 1%. Let me go to some other day. So we'll go to historical and I'll go to say, okay, 13th. What was 13th? Yeah, a trending move was there. So we will expect, see, this is green. So sentiment is definitely bullish. But you need, for a strong move, you need 1% move, which happened over here, which indicated only over here. I mean, it's not that you should not be taking trades over here. You can still take trades here if you get whatever price signals that you get, price-based signals you get. This is the initial trend. Initial trend is bullish, so you can go ahead and take your trades in this direction. But you get confidence once you see a minus 1% move. So here on the call side, when a minus 1% move is seen, market has pulled back a little, but it means that people have closed positions on the call side. So the market can continue to trend up. There is a very good chance that it will still keep going up.
we have not seen a put side 1% move at all for this day. Only call side you have seen. So first signal, yeah, सर कॉल साइड कॉल सी वाई चेंज अगर 1% से डाउन होता है हाँ दिस मीन बुलिश सिग्नल, हाँ, ओके ना? नहीं 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 नहीं, वैसा वैसा नहीं है। बुलिश सिग्नल आपको यहां से मिल जाएगा, ये डिफ कॉलम जो है यहां से आपको ये बुलिश है, ये क्लियर सिग्नल मिल जाएगा। तो मैं ओके। ये बता रहा हूं कि -1 अगर मिला, अगर दिखा, तो ये आप बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट उस तरफ और जाएगा ओके। और स्ट्रांगली जाएगा कॉल के साइड, यानी कि अपसाइड में जाएगा। क्योंकि कॉल के साइड जो शॉर्ट सेलर्स हैं, जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, वो लोग पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। और कॉल के ओके। साइड पोजीशन सेलर्स क्यों क्लोज करते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, उनका लॉस और बढ़ेगा। तो ये दिखाता है ये। ओके। ओके। या अगर ये पुट के साइड हुआ, तो पुट के साइड अगर पोजीशंस क्लोज होने लगे, यानी कि पुट के साइड आपको अनवाइंडिंग दिखा, तो वो भी देखेंगे एग्जांपल, वो भी देखेंगे। तो पुट के साइड अगर अनवाइंडिंग दिखा, तो नीचे के साइड मार्केट नीचे जा रहा है, तो पुट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि और भी नीचे जाएगा, तो उनका लॉस और भी बढ़ेगा। पुट के साइड पुट सेलर्स, ये ओके। सेलर्स उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसका से रिस्क एनालाइज करना पड़ता है। ओके, उसका रिस्क और बढ़ जाएगा। हाँ, और बढ़ जाएगा। जो जो भी पुट सेलर्स है उनका रिस्क बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1% मूव जब आया, तो उनको कॉल सेलर्स को लग रहा था कि मार्केट और ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर ही जा रहा है, सुबह से ऊपर ही जा रहा है। तो यानी कि काफी सेलिंग हुआ, लेकिन एट लास्ट फाइनली कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि उनको पोजीशंस क्लोज करने हैं, और काफी सिग्निफिकेंट पोजीशन क्लोज हो गए इसमें। 1% यानी कि सिग्निफिकेंट होता है, तो क्लोज हो गए, तो मार्केट शायद और ऊपर जाएगा। कुछ देर पे पुल बैक किया मार्केट ने, थोड़ा नीचे आया, ज्यादा नहीं, थोड़ा नीचे आया, लेकिन उसके बाद ट्रेंड फिर कंटिन्यू हुआ। तो आप देखेंगे कि उसके बाद फिर छोटे छोटे आप अनवाइंडिंग देखते जाएंगे, 0.3%, 0.46%। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 1% जब दिखेगा, वो थोड़ा इंडिकेशन देगा कि उस तरफ जा सकता है। लेकिन आपको हमेशा दोनों साइड अनवाइंडिंग चेक करना पड़ेगा कि किस तरफ बड़ा अनवाइंडिंग आ रहा है। यहाँ से फिर से 1% आया, यानी कि मार्केट और जा सकता है। और कई लोगों ने कॉल के पोजीशंस क्लोज किए, यहाँ पे कुछ लोगों ने क्लोज किए, उसके बाद और मार्केट ऊपर गया, और और क्लोज किए, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स बढ़ा है यहाँ पे, तो और पोजीशंस क्लोज किए। पुट साइड में कुछ अनवाइंडिंग नहीं हुआ है, क्योंकि पुट पुट में आप देखेंगे वो ऐड होते रहेगा, ऐड होते रहेगा, पोजीशंस ऐड होते जाएंगे। यहाँ भी आप पुट का देख लीजिए, पुट का सिर्फ ऐड होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। और यहाँ पे एट द सेम टाइम आपको ये जो ग्रीन, आपको जो डार्क ग्रीन दिख रहा है, आप ये भी मॉनिटर कर सकते हैं, ये भी मॉनिटर कर सकते हैं इंट्राडे के टाइम। ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा पोजीशंस कहाँ पे है। तो ये भी आपको आप देखेंगे कि पुट साइड पे, पुट साइड बढ़ता रहेगा, जैसे ये कॉल्स के ऊपर रहेगा ये, तो यानी कि पुट साइड में ज्यादा पोजीशंस बनते जाएंगे। ये पूरा वही दिखा रहा है, ये ग्रीन भी वही दिखा रहा है, ये भी सारा वही दिखा रहा है, ये भी वही दिखाता है। और एट द सेम टाइम पीसीआर भी वही दिखाएगा आपको। पीसीआर यहाँ पे कम था, 0.9 था, और यहाँ पे ऊपर स्टेडीली बढ़ते ही गया है। कम, ज्यादा कम नहीं हुआ है, थोड़ा कम होगा, लेकिन वो होल्ड करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, 1 के ऊपर जाएगा, और ये भी बढ़ता ही रहेगा। सिग्निफिकेंट गिरेगा नहीं, ज्यादा गिरेगा नहीं, क्योंकि सब सब पूरा इसी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पीसीआर ओआई चेंज हो, पीसीआर हो, ओपन इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और ये सारा डेटा जो है वो ऑलमोस्ट सेम वही दिखाएगा। ये आप कोई भी एक एक दो कॉलम्स पकड़ लीजिए, और उसको सिर्फ उसको एनालाइज कीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है डिफ, क्योंकि आपको मार्केट के स्टार्टिंग से वही दिखाएगा, वो इंडिकेशन दिखाएगा, और उसके साथ आपको फिर अनवाइंडिंग आपको मॉनिटर करते रहना है। तो ये 3 कॉलम्स सबसे ज्यादा है। और ये फिर कंफर्मेशन के लिए आप ये देखिए कि फ्यूचर्स प्राइस, ये ग्रीन जब दिखाएगा वीवैप के ऊपर है, और ये रेड दिखाएगा वीवैप के नीचे है। तो आपको यहाँ बुलिश दिख रहा है, तो ये भी कंफर्मेशन आपको चाहिए कि वीवैप के ऊपर है या नहीं। वीवैप के नीचे आता है तो कितने देर के लिए नीचे आ रहा है ये, और फिर ऊपर जा रहा है या नहीं। ये अगर ग्रीन ही है और कंटिन्यू हो रहा है, तो यानी कि ये सिर्फ टेम्पररी रहेगा ये। तो फिर ऊपर जाएगा, तो ये आपको प्राइस सिग्नल जैसा रहेगा ये, कि आप कंटिन्यू हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ फिर से पुल बैक हुआ, ये ग्रीन है, कंटिन्यूस ग्रीन ही है, और वापस ये ग्रीन में गया, तो यानी कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है फिर से। तो ये आप 3-4 कॉलम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी बहुत सारे हैं, ये वीवैप भी है यहाँ पे, काफी
है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है, ये कॉलम्स है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये फ्यूचर्स प्राइस वीवैप के ऊपर है या नीचे है। ये चार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है। ठीक है सर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ओके। थैंक यू सर। ओके, इस टूल में और कोई किसी को डाउट? सर ये अभी बताया आपने कि रेड रहेगा तो वी वेब से ऊपर नीचे रहेगा, और हाँ, ग्रीन रहेगा तो वी वेब से ऊपर रहेगा। हाँ, सर ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, ये फ्यूचर्स प्राइस है ये। अगर ये जब भी वो वीवैप के ऊपर होता है तो ये रेड शेड में रहता है, ये इसका बैकग्राउंड रेड रहेगा। तो ये वीवैप है, तो यहाँ 54 है, अभी यहाँ वीवैप 657 है, तो ये इसके नीचे है तो रेड में रहेगा शेड। और ये उसके वीवैप के ऊपर रहेगा तो ग्रीन रहेगा। तो जनरली वीवैप के ऊपर होता है तो बुलिश, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वीवैप के ऊपर है। तो ये रेड रहेगा तो वीवैप के नीचे है, तो शायद बेरिश हो सकता है। लेकिन फिर आप ये कॉलम देखते रहिए, क्योंकि ये अगर ग्रीन आपको दिखा रहा है तो फिर शायद मार्केट और ऊपर जा सकता है, वो कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नीचे जाएगा। अगर ये फिर इसका ओके वैल्यू सर, बहुत, थैंक ये, यू। हाँ, सर एक क्वेश्चन पूछे सर। इस टूल के बारे में। जी जी जी। हाँ, बोलिए सर। सर इस साथ में जो अपना ये तो आप अच्छा समझा है सर, बट हम्म। ये जो फ्यूचर्स चेंज एंड फ्यूचर्स प्राइस और फ्यूचर चेंज का जो इसका क्या सिग्निफिकेंस है सर, और इसको कैसा रीड करें इन दोनों का साथ? नहीं, ये तो बस इंफॉर्मेशन के लिए है। ये आपको बता रहा है कि पिछले मार्केट क्लोज से अब हम्म, तक फ्यूचर्स प्राइस चेंज कितना है। ये पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर है बेसिकली, क्योंकि कल कल के क्लोजिंग के हिसाब से ऊपर ऊपर है मार्केट, बस यही दिखाता है। अच्छा और अच्छा। ये फ्यूचर्स प्राइस चेंज जो है, ये आपके 3 मिनट के इंटरवल का है। 3 3 मिनट में क्या हो रहा है, तो ये आपको बताएगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। यानी कि अगर ये थोड़ा रेड रेड दिख रहा है तो नीचे नीचे जा रहा है थोड़ा, और फिर ये यहाँ पे ग्रीन हो गया तो ये ऊपर जा रहा है, थोड़ा पुल बैक फिर ऊपर। ये 3 3 मिनट का है ये। तो ये अच्छा ये एनालिसिस में ये थोड़ा अगर आप टाइम इंटरवल बढ़ाएंगे तो फिर ये आपको कंसिस्टेंटली सेम ऐसा इसका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ये बस ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि 3 3 मिनट में क्या हो रहा है, सिर्फ यही दिखाएगा ये। अच्छा अच्छा। बट सर ये ऑप्शंस ट्रेडिंग के साथ हमें के फ्यूचर्स प्राइस का नजर रखना क्या जरूरी है? डिपेंड करता है, क्योंकि एक तो ऑप्शन अगर आपका स्ट्रैटेजी स्ट्रैडल वगैरह स्ट्रैंगल सेल करने का है या ऐसा है, तो जी फिर आपको उतना उसका यूज उतना तो नहीं रहेगा, क्योंकि आप वो प्रीमियम्स देखते रहेंगे या फिर वो स्ट्रैडल का चार्ट देखेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन आप अगर ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो फिर आपको ये फ्यूचर्स प्राइस इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे भी, क्योंकि मार्केट ओके। कहाँ जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अच्छा ऑप्शन अच्छा। बाइंग में वो बाइंग का डेफिनेटली, सर ये सिग्निफिकेंट है सर। हाँ, बाइंग के लिए तो सिग्निफिकेंट रहेगा तो। जी जी। हाँ, राइट राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, ओके, ठीक है। वीवैप और मैक्स पेन के बारे में किसी ने पूछा था। आ, एक एक, फ्यूचर में डेट जी, वाइज ओवर समरी है। सॉरी, जतन बोल रहा हूँ। हाँ सर, फ्यूचर में एक डेट वाइज ओआई समरी है, हाँ। उसमें स्ट्रेडल दिखा रहा है। वो स्ट्रेडल से क्या पता चलता है? नहीं, ये सिर्फ ये स्ट्रैडल इसमें इसके लिए इसलिए दिया है कि क्या होता है कि स्ट्रैडल एटीएम स्ट्रैडल परसेंट जो है, यानी कि फ्यूचर्स प्राइस के हिसाब से ये एटीएम का जो स्ट्रैडल का प्रीमियम है कितना है, ये दिखाता है ये। तो ये प्रीमियम क्या है, ये जो स्ट्रैडल ट्रेडर्स होते हैं तो ये देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट प्रीमियम है या नहीं। यानी कि इसमें आजकल क्या हुआ है कि आप अगर इंडेक्स का अगर लेंगे तो ये स्ट्रैडल प्रीमियम बहुत कम हो चुका है। एक टाइम पे बहुत काफी बड़ा प्रीमियम रहता था ये, तो अभी ये काफी कम हो चुका है। तो ये क्या है कि ये पहले देखना पड़ता है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर आप स्ट्रैडल ट्रेड कर रहे हैं
तो ये 1% है यहाँ पे। 1% का कई बार बस नहीं होता है परसेंट मतलब? प्रीमियम। तो ये काफी ट्रेड करने के लिए इनफ नहीं होता है। तो नहीं ये मतलब 1% मतलब किस चीज का? फ्यूचर्स प्राइस का। अब ये ओके। जो है 282 जो है, ये डिवाइडेड बाय ये कर लीजिए, आ जाएगा आपको, ये परसेंटेज आएगा। ओके। तो ये तो मतलब ये सिग्निफिकेंट है या ज्यादा नहीं? है तो मतलब? ज्यादा रहा तो फिर प्रीमियम ज्यादा है, आप ट्रेड कर सकते हैं, प्रीमियम कैप्चर कर सकते हैं। ये का बहुत कम अगर रहा तो ये कई बार क्या है, आईवीज वगैरह बहुत कम हो गए तो ये काफी कम हो जाता है। तो ये तब इसको थोड़ा, एसेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे कितना तो पता परसेंटेज होना चलेगा चाहिए? ना? नहीं, ये कितना परसेंटेज होना चाहिए ये तो आप, ये ट्रेड करके करके पता चलेगा। थोड़ा मेरे ख्याल से 1.52% हो तो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन ये होता नहीं है आजकल, काफी कम होता है मेरे ख्याल से। आप अगर विकन जी, हाँ इसमें बोलिए। से ये निफ्टी हटा के पूरा ले ले हाँ तो, और फिर अभी इसमें एटीएम स्ट्रेडल जो है ना, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग करो तो क्या प्राइस आएगा सबसे ज्यादा वाला? हाँ, वो तो रहेगा। ये तो रेड तो छोड़ दीजिए, ये आप ट्रेड नहीं कर सकेंगे क्योंकि बैन में है। लेकिन ओके। बाकी के जो है काफी है। हाँ, लेकिन वो देखना पड़ता है कि अगर सिर्फ वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो तो वो मैनेज भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कितना परसेंटेज सिग्निफिकेंट है, ये आप अगर इसको मॉनिटर करते रहेंगे तो ही पता चलेगा। ये और ये भी है, और एक चीज है इसमें, ये एक और इश्यू क्या है कि ये जो है ये मंथली एक्सपायरी मतलब दिखा रहा है ये। इसमें कोई जजमेंट नहीं ले सकते अपन? नहीं 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 नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन है। सी सारे ये कॉलम्स बहुत सारे होते हैं सर। तो ऐसा इसमें ऐसा नहीं होता कि हर एक कॉलम से आप कुछ सिग्नल ले सकते हैं। ये थोड़े होते हैं, सिर्फ तो ले इंफॉर्मेशन के लिए लेना होते है। हैं। तो कुछ ट्रेडर्स सिर्फ फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं कि अगर ये थोड़ा बस इतना ऐसा कुछ वैल्यू हो किसी कॉलम का, तो फिर वो हम कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आपको इससे डेफिनेटली कुछ मिलेगा। तो ये अब कुछ लोग हैं, वो कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इंडेक्सेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है वो। स्टॉक्स के लिए आपको देखना पड़ेगा, इंडेक्स के लिए। नहीं मतलब जिन लोगों ने ये सजेस्ट किया है वो लोग अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे इसके रिगार्डिंग तो बढ़िया होगा। हाँ पता है, वो तो हमारे ग्रुप कोई में ना किसी कोई तो ने यूज काफी करता है पोस्ट किया जिसने था। आपको सजेशन दिया है। हाँ, वो किसी ने ग्रुप में पोस्ट किया था, हमने ऐड कर दिया। काफी लोगों ने पूछा था तो हमने ऐड कर दिया है इसको। तो आप ये ये, लेकिन डेटा इसका इंडेक्स का एक एक चीज बताना है मुझे, एक मिनट। ये इंडेक्स का जो है, यहाँ पे आप अगर इंडेक्स का देखेंगे तो ये जो है से आपको मंथली एक्सपायरी का दिखा रहा है। आपको एक्चुअली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स, तो ये आपको मैन्युअली आप जाके ये देख लीजिए, यहाँ पे बेटर रहेगा। एटीएम स्ट्रैडल का जो प्राइस है, ये 282 है, यहाँ पे 282 283 है। वो डिवाइडेड बाय फेयर प्राइस या ये कर लीजिए, तो आपको जितना आता है तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि आप वीकली ट्रेड करेंगे, मंथली ट्रेड तो वो नेक्स्ट वीक आएगा। तो अभी 21st के लिए ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डे वाइज में नहीं दिख रहा है आप। वो डे वाइज में नहीं दिखेगा, वो वीकली पे दिखेगा। और वो स्टॉक्स का वहां पे आपको अब मिल जाएगा, उसमें वहां पे वीकली का नहीं आता है परसेंटेज। तो ये परसेंटेज जो स्ट्रैडल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता वो है। सर इसका मतलब है जितना हाई वैल्यू मिलेगी ना शेडल की उतना हाँ, ज्यादा उतना प्रीमियम बेटर मिलेगा। होगा। और वैसे वो आईवी पे डिपेंड होता है, आईवी अगर कम हो तो कम रहता है ये, आईवी ज्यादा ठीक हो है तो ज्यादा हो जाता है वो। पूरा सर। प्रीमियम्स तो आईवी पे डिपेंड करते हैं काफी। तो ऐसा। सर एक क्वेश्चन था, ये आप प्रीमियम डीके को लाइव का है कोई प्लान नहीं? हाँ है सर, वो उसमें थोड़ा एक इश्यू है, चल रहा है उसमें, टेस्टिंग चल रहा है। वो क्योंकि अच्छा। प्रीमियम डीके में कंप्यूटेशंस बहुत होते हैं, और वो रियल टाइम में कंप्यूटेशंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो पेज वगैरह फ्रीज होने का चांस होता है। तो वो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी चल रहा है उसमें, यहाँ इंटरनली चल रहा है, मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही आ जाता है मेरे ख्याल से, वो ऑल स्ट्राइक्स वाला ऑप्शंस नहीं रहेगा उसमें, या काफी कम स्ट्राइक्स का दे देंगे हम लोग, 5 स्ट्राइक्स 7 स्ट्राइक्स का लिमिट कुछ रखेंगे। तो पेज में प्रॉब्लम ना हो लोडिंग में, या फ्री हैंग ना हो जाए। तो ठीक है वो सर। उस पर टेस्टिंग चल रहा है, तो वो जैसे ही खत्म हो जाता है उसको रिलीज कर देंगे हम। और सर लाइव प्राइस पर वाई में भी आपका ऐड होगा? प्राइस वर्सेस ओआई तो है ना लाइव में? नहीं सर, ये ऐप नहीं है ना इसमें। हाँ, वीवैप नहीं है, ओके ठीक है। मैं ये, आप पहले बोल रहे थे ना इसको हम ऐड करेंगे वी ऐप को। हाँ ऐड करना है वीवैप। मैं कल पूछ लेता हूँ, इसको टीम से बात करता हूँ। वीवैप का थोड़ा इजी हो वीवैप का जाएगा भी एक क्योंकि इशू था। होता क्या है,
कि जब ट्रेड करते हैं ना रियल टाइम में, हाँ। तो प्राइस इतना वो दिखाता कुछ है, फिर जब तक हम जाते हैं ऑर्डर लगाने वो इतना ब्लास्ट कर जाता है कि फिर वो ऑर्डर छूट जाता है। ओके। हाँ, वीवैप का इशू क्या है पिन कि पैकेज हो जाता काफी है। कई जो ब्रोकर्स हैं वो एपीआई में वीवैप नहीं दे रहे हैं। हमको क्या है, हमने जब यहाँ पे ऐड किया था तो वो जो एनएसई का फीड आता है तो उसमें वीवैप भी आता है, तो इसमें लाइव में ब्रोकर के फीड में अवेलेबल नहीं है वो एपीआई में। तो वो देख रहे हैं, वो हम लोग भी कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूट करना मतलब कुछ भी रियल टाइम में कंप्यूटेशन करना थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। देखता हूँ सर, ये मैं पूछ लेता हूँ, स्टेटस इसका पूछ लेके क्या कोई और बेटर अपडेट। ऑप्शन हो इसमें कोई ऐड करने का, नहीं वीवैप, तो वीवैप जो आपको अगर कंपनी की वीवैप प्रॉब्लम चाहिए तो आती है? वीवैप ही रहेगा ना, इससे और बेटर क्या रहेगा उसमें। नहीं वो तो, हाँ, ठीक है सर, ठीक। जी देखता हूँ, ये थैंक मैं अपडेट करता हूँ आपको। मुझे एक बार टेलीग्राम में कल मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक ओके। यू। हाँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे चैट में कई लोगों ने कुछ पूछा है, मैं नोट कर लेता हूँ और बाद में डिस्कस करता हूँ। वॉलेटिलिटी स्क्यू, वॉल स्क्यू, एक वॉल स्क्यू, वॉल स्क्यू के बारे में पूछना है। आईवीएचवी डेटा, स्ट्रैडल प्रीमियम, वीवैप, ऑप्शन चेन, ओटीएम प्राइस चेंज, आईटीएम प्राइस समरी टेबल। किसी ने पूछा है कि ऑप्शन चेन में ओटीएम प्राइस चेंज, आईटीएम प्राइस चेंज। अच्छा, और ये तो टोटल प्रीमियम चेंज ओटीएम। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ इसके बारे में, आई विल थिंक अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट वीवैप और मैक्स पेन के बारे में किसी ने पूछा था। क्या क्वेश्चन था उसमें, क्या डाउट था? सर एक दिन का वी बैप तो मैक्स पे नहीं होता होगा? एक दिन का वीवैप मैक्स पेन? नहीं नहीं नहीं। क्यों? सर आ, नहीं, मैं समझा नहीं सर, कैसे हो सकता है? 1 मिनट। सर एक दिन का मैक्स पेन मतलब कि वो सबसे ज्यादा वहां पे बाइंग या सेलिंग हुई है, वी बैप भी तो मूविंग एवरेज फिर वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे वी मैक्स पेन नहीं चल रहा नहीं, मैक्स पेन जो होता है, एक मिनट। नहीं, ये तो आपको पूरे ओआई पे डिपेंड करता है, ये तो ओपन इंटरेस्ट, पूरा ओपन इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। वीवैप का इसका कोई लिंक हो ही नहीं सकता। वीवैप तो प्राइस और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये प्राइस और ओआई पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखेंगे वन डे, अब यहाँ इस दिन का एग्जाम्पल लीजिए लीजिए आप, ये टाइम का एग्जाम्पल लीजिए। इसका वीवैप यहाँ कहीं हो सकता है। यहाँ पे वीवैप नहीं डाला है हमने, वीवैप डालना चाहिए। तो इसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, एक मिनट, मैं दूसरे एक टूल में जाता हूँ जहाँ पे वीवैप देख सकते हैं, फ्यूचर्स है। सर प्राइस। यहाँ पे वी बैप ऐड हो जाता तो अच्छा रहता, देखते हम। मैं करवा देता हूँ सर, करवा देता हूँ, एक मिनट। आ, सर यहीं पे नीचे की तरफ ना एक लाइन बनी हुई है ब्लू पिंक कलर की, उसमें ना प्राइस की लाइन आ रही है, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है सबसे सॉरी, नीचे सॉरी, समझे? सर मैक्स पेन वाला जो चार्ट है ना, हाँ, बॉटम में एक पिंक कलर की है ना, एक बार दी हुई है, उस पर प्राइस भी मूव कर रहा है, ये है क्या चीज है? ये वाला, हाँ लास्ट में बिल्कुल। ये वो चार्ट जूम आउट, जूम इन, जूम आउट करने के लिए पूरा पूरा पूरे चार्ट का बता रहा है ये, कि मैक्स पेन कैसा है, ये बता रहा है। सिर्फ ये सिर्फ ये चार्ट को जूम इन जूम आउट करने के लिए है। वो चार्ट का कुछ टूल है वो, बस। हाँ। ओके। तो ये जो है, अगर इसका देखेंगे, निफ्टी 21 अगस्त, एक मिनट, 618। हाँ, ये वाला है। वीवैप इसका यहाँ पे है एट प्रेजेंट, राइट। और यहाँ पे अगर 2701 लेते हैं, तो यहाँ पे 701 यहाँ पे है वीवैप एक्चुअली, और ये मैक्स पेन यहाँ पे है। तो इसका कोई होता नहीं, वीवैप एक दिन का हो या, और उसका मैक्स पेन का कोई नहीं होता है सर, कोई लिंक नहीं है इसमें।
सर मैक्स पेन वाले चार्ट पे वीवैप को लगाइए या वीवैप वाले चार्ट पे मैक्स पेन को, तो सर बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है, ये ऐड करवा देता हूँ, ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। केवल वीवैप भी रहेगा तो चल जाएगा सर। वीवैप ऐड कर देंगे सर इसमें, नो प्रॉब्लम, मैं नोट कर रहा हूँ ये। ये हो सकता है जो ये है ना क्यूमुलेटिव वाइज चेंज में ही मैक्स पेन की लाइन ऐड हो जाए। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें इसमें क्या है, कंप्यूटेशन काफ़ी है, कंप्यूटेशन करना पड़ता है। मैं देखता हूँ अगर ये कंप्यूटेशन हम लोग ऑफलाइन कर रहे हैं तो इसमें ऐड होता है तो करवा देता हूँ। मैं एक बार बात करता हूँ, नोट कर रहा हूँ मैं ये। मैक्स पे सर अभी आपने एक्सप्लेन किया कि नीचे है वीवैप, ऊपर है, नीचे है मैक्स पेन, ऊपर नीचे, ये वाला थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिए ना, इसको मैं थोड़ा सा ये मैं माइंडसेट में सिर्फ बनाना है। ये सिर्फ वैल्यूज देख रहा हूँ मैं। इसका लास्ट तो वैल्यू क्लोजिंग जो वैल्यू है 24701 है यहाँ पे, और 24701 यहाँ पे कहीं आता है वो, क्योंकि मोस्टली वीवैप आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस के ऑलमोस्ट ऊपर ही था, प्राइस के ऊपर ही था, और यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे है, तो वीवैप ऐसे ऐसे ही रहेगा वो यहाँ पे, तो वो ऊपर ही रहेगा वो यहाँ पे, इसके मैक्स पेन के काफी ऊपर रहेगा वो। हाँ, मैक्स पेन के ऊपर है वीवैप, इसीलिए मैक्स पेन ने वीवैप को खींच के नीचे लाया है। हाँ ठीक है सर, यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी सर। हाँ सर, करवा देता हूँ मैं इसको, मैं नोट कर लिया है मैंने, मैं कल ही बात करता हूँ टीम से, कर देंगे उसको। ठीक है, थैंक यू। राइट, प्रीमियम डीके देखते हैं, उसका क्वेश्चन था, तो प्रीमियम डीके पे जाता हूँ मैं। हाँ, प्रीमियम डीके मैं जनरली ऐसे इसको करता हूँ, ये पहले प्राइस चेंज निकालता हूँ मार्केट जब ओपन होता है, और फिर फेयर प्राइस कितने पे है देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे 682 पे, 24682 पे है, तो इसको यहाँ पे 24682 मतलब 247, ये एटीएम होता है मार्केट ओपन का, वहां पे सेट करके प्राइस चेंज पे आ जाता हूँ मैं, तो ये दिखाएगा। तो इसमें सर एच सी और लास्ट में जो एक्स पी लिखा हुआ है उसका सेंस क्या है? ये हाँ, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू दिखाता है, लेकिन ये एट प्रेजेंट इसको इग्नोर कीजिए, हमको टेस्ट करना है, ये ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाएगा, ये सेम ऑलमोस्ट वही लाइंस आ रहे हैं, तो ये सर अब इसका ये सेम नहीं लग रहा है सर, इसमें एरर आ रहे हैं, इसलिए जैसे क्या आप 4 अगस्त को देखिए, 4 अगस्त करिए 4 टाइमिंग अगस्त हिस्ट्री में। हाँ, हिस्टोरिकल 4 अगस्त, एक मिनट, एक्सपायरी आने दीजिए सर, उससे कोई मतलब नहीं है, आप सेलेक्ट डेट कर लीजिए। 4 अगस्त नहीं, लेकिन एक्सपायरी तो वही लगाना पड़ता है ना, ये एक्सपायरी चलेगा नहीं उसमें, एक्सपायरी 27th लगाना पड़ेगा, और फिर 4 अगस्त करना पड़ेगा इसको। हाँ सर, गुड, लेकिन ये स्ट्राइक्स अलग होगा, मैं नियर एटीएम यूज कर ले। हाँ बताइए। तो ये मतलब उसके वैल्यू सही है मतलब? हाँ वैल्यू करेक्ट ही है, लेकिन मुझे हमको इसमें क्या यूज है, मुझे ये एक बार मैंने एक्चुअली मेरे टीम से डिस्कस किया था कि ये करेक्ट है या नहीं, हमको देखना है ये एक्सट्रिंसिक, ये यानी कि ये टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू भी ऐसे ही चेंज हो रहा है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली, टाइम वैल्यू ऐसे तो चेंज होता नहीं है, तो ये टाइम वैल्यू इसका काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये नियर एटीएम ले रहा हूँ, तो ये करेक्ट आ रहा है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन हमको ये टाइम नहीं मिला है इसको टेस्ट करके फिर से ये करने के लिए, तो तो लेकिन ये जैसे अगर इसी पे अगर हम मंथली अगर देखना चाहें कि मंथली में क्या डिफरेंस हो रही है, और एक्सपायरी हमारा 31 अगस्त हो, तो मंथली नहीं, यानी कि ये मल्टीपल डेज का बोल रहे हैं क्या, प्रीमियम डी के? हाँ नहीं समझा नहीं, मैं कई दिन सर, का मैं एक बार देखना है आपको। जैसे मैं मंथली में ट्रेड करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मंथली में ही क्या डिफरेंस हो रहा है स्ट्रगल में, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उसी का मैं देखना चाहता हूँ वैसे। हाँ तो मंथली एक्सपायरी देख लीजिए, वह उसमें आ जाएगा, मंथली एक्सपायरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, आ जाएगा। हाँ इसमें अब ऐसा दिन अगर होता है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है,
कुछ भी ट्रेड करना, क्योंकि आप देखेंगे ट्रेंड चेंज होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। सर। तो ये ऐसे दिन, और ये आप कुछ भी यूज नहीं कर सकेंगे इसका तो एक। इसमें एक्सटेंडिंग वैल्यू देखिए उसका क्या हो रहा है सॉरी, सर उसमें। हाँ, एस वैल्यू देखिए इसका, सी और पी का। एक्सट्रिंसिक हाँ। नहीं, वो इग्नोर कर दीजिए, मैंने आपको बताया ना, आप यूज मत कीजिए इसको, ये ओके। ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ओके। लाइन उसी लाइन के साथ चल रहा है। तो ये टाइम हम्म, वैल्यू होता है, ये टाइम वैल्यू होता है ऑप्शन का। ओके। तो ये ओके। करेक्ट है या नहीं मुझे कंफर्म करना है एक्चुअली। तो ये हम्म, टेम्पररली आप इग्नोर कर दीजिए इसको, ये वाला देखिए। ठीक है। हाँ, ये जो है, ये जो कॉल और पुट, मॉर्निंग सुबह मार्केट ओपन से कितना चेंज हुआ है ये दिखाता है। और हम्म, एग्जैक्ट नहीं रहेगा ये, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा वॉलेटिलिटी का एडजस्टमेंट होता है, तो वो उसका कंप्यूटेशन भी आता है इसमें। तो ये आपको, ये हम्म, बेसिकली आपको ये दिखाएगा, ट्रेंड दिखाएगा। तो ये ऐसा ऐसा जब दिखेगा, आप दो सुबह में आप एक दो, अगर आपको विप्सो आ जाएगा, यानी विप्सो आने के ऊपर का मूव, फिर नीचे का हम्म, मूव, ऊपर का सिग्नल नीचे का सिग्नल, तो ये फिर काम उस दिन ज्यादा काम नहीं करेगा। अगर एक एक तरफ अगर गया तो फिर आपको क्लियर इंडिकेशन देगा। तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज जैसा हो गया है यहाँ पे। ये जो क्लोज जब होता है, दोनों लाइंस हम्म, जीरो के बहुत क्लोज हो जाते हैं तो साइडवेज हो जाता है। और ये अगर आप दो तीन ऐसे देखें तो फिर उस दिन हम्म, आपको बहुत केयरफुल होना है ये टूल यूज करने में। हम्म, अब अगर ट्रेंडिंग डे अगर हो तो फिर आपको मोस्टली ओके हो जाता है। ये एक दिन हम्म, आपको ये आप बुलिश दिखाया, फिर सिर्फ यहाँ पे थोड़ा आपको डाउट आया था, और उसके बाद फिर से अगर आप बुल यहाँ पे बेरिश भी अगर ले लेते तो इमीडिएटली हम्म, रिवर्स भी हो गया। तो ऐसे दिन ये चल जाएगा ये। तो मोस्ट हम्म, डेज चल जाता है, मोस्ट डेज बराबर इंडिकेशन मिल जाता है। लेकिन कई कुछ दिन होते हैं जो ऐसे होते हैं, तो उस दिन जनरली साइडवेज हो जाता है। आप देखेंगे कि ओके। ये फेयर प्राइस का अगर देखेंगे तो मोस्टली जीरो के ऊपर नीचे था, यानी कि हम्म, फेयर प्राइस मतलब मार्केट का ओवरऑल प्राइस चेंज है ये। तो ये ऊपर नीचे हम्म, 25 पॉइंट ऊपर नीचे था पूरे दिन, 25 पॉइंट ऊपर नीचे हम्म, फ्यूचर्स मूव हम्म, हुआ है। तो ये दिखा रहा है। हम्म, तो ये दिन मोस्टली ओके। साइडवेज था। अगर ट्रेंडिंग होगा तो वो ऐसे दिखेगा, ट्रेंडिंग होगा तो ये ऐसे दिखेगा कि सिर्फ इसके ऊपर रहेगा। एक, ये ऐसे पूरा जीरो के ऊपर ही दिखेगा आपको, ज्यादा हम्म, नीचे नहीं आएगा। ये ट्रेंडिंग के टाइम ऐसे होता है। हम्म, इसमें क्या डाउट था किसी को? मैं बेसिकली वही है, आप किस तरफ मूव जा रहा है वो आप देख सकते हैं, और फिर उस तरफ आप ट्रेड्स ले सकते हैं। यहाँ पे जब ऐसे रिवर्स हो जाता है तो आपको केयरफुल होना पड़ता है। ये रिवर्स, ओके। ये तो क्लियर रिवर्सल दिखा रहा है, लेकिन फिर से मार्केट रिवर्स होके फिर मार्केट पूरा ऊपर ही गया है। ये जब तक ये लाइन, ये फेयर प्राइस लाइन के ऊपर होता है तो जनरली बुलिश होता है, और एग्जैक्टली रिवर्स होता है। अगर रिवर्स मार्केट जा रहा है तो ये लाइन यहाँ पे आ जाता है, फेयर प्राइस वाला। और ये ऑलमोस्ट यहीं पे होता है, यहाँ बहुत इतना डिफरेंस नहीं होता है। ये पुट वाला जो लाइन होता है ये काफी ऊपर चला जाता है, कॉल वाला लाइन नीचे आ जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। और ये फेयर प्राइस लाइन ऑब्वियसली नीचे रहेगा, ये कॉल के लाइन के साथ, बेरिश जब मार्केट होता है तो। एक बार पीछे जाता हूँ, बेरिश मूवमेंट इस दिन भी साइडवेज था। ये एग्जांपल भी आप देखेंगे, थोड़ा सुबह के दिन ऊपर, सुबह ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बाद ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ही था। लेकिन प्लस 100 पॉइंट्स था, काफी मोस्ट ऑफ द डे बुलिश था ये। यहां से पूरा यहां तक बुलिश था, दोपहर में रिवर्स हो गया मार्केट। ये क्लियर कट बुलिश इस दिन, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ऐसे ये बेटर है। ये क्लियर कट ऐसे ऐसे जब होता है ये इसके ऊपर, और ऊपर ही जब रहेगा तो उस दिन आप स्ट्रांगली बुलिश होता है तो सिर्फ उस साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर ये इसके फेयर प्राइस के नीचे आ रहा है तो फिर वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है। ये ऐसे जब ऊपर ही चलता है कॉल का तो फिर एकदम बुलिश होता है। बेरिश के दिन एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, ये रेड लाइन ऊपर होता है, ग्रीन लाइन नीचे होता है, रेड लाइन इसके ऊपर ही होता है, तो स्ट्रांगली बुलिश होता है।
एक मिनट। सर ये ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा ना? हाँ, ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट है, करेक्ट। एक बेरिश का देखना है मुझे। ये बेरिश के दिन ऐसे होता है, बेरिश स्ट्रेट अवे ये दो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जीरो के नीचे रहेगा ये लाइन, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, प्राइस चेंज नेगेटिव रहेगा, फेयर प्राइस, फ्यूचर्स का प्राइस। कॉल एकदम नीचे रहेगा, पुट बराबर ऊपर रहेगा, कंटिन्यूस ऐसे। थोड़ा भी फेयर प्राइस और ये अगर यहाँ पे आ गया जीरो के आसपास, तो फिर ये वीक रहेगा। क्लियर कट ये इधर ये इसके जीरो के नीचे होना चाहिए, जीरो के ऊपर होना चाहिए, और लाइंस भी क्लियर ऊपर या नीचे होने चाहिए, तो फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो उस तरफ आप स्ट्रॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं या ज्यादा पोजीशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। बाकी साइडवेज हो तो फिर आपको सोचना, साइडवेज हो तो फिर ऑप्शन सेलर्स के लिए बराबर है, तो ऑप्शन सेलर्स आप वो देखते हैं। ये ऑप्शन सेलर्स दोनों दोनों के, आप साइडवेज अगर मूव भी हो तो फिर ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा है, तो वो भी। अब ये लेटेस्ट जो कल का था ये ऑप्शन सेलर्स के लिए है, तो आप दोनों साइड कर सकते हैं। अभी ऊपर नीचे अगर गया तो उसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए ठीक है। आप देखेंगे कि 100 पॉइंट ऊपर भी नहीं था, सिर्फ एक बार थोड़ा जाके आ गया, 100 पॉइंट ऊपर ऊपर जाके डाउन साइड में, तो ओवरऑल साइडवेज था। ये प्रीमियम डी के, हाँ, आईवी के रिलेटेड पूछा था किसी ने, आईवी टूल्स। आईवीएसक्यू के बारे में पूछा था किसी ने। हाँ, आईवी की। ये आईवी क्यू है। यहाँ पे मैंने ये जो लाइंस है, ये जो है, यानी कि ये आप ये पहले देखिए, ये आज करंट स्क्यू दिखा था, ये करंट वॉलेटिलिटी स्माइल कहते हैं इसको। तो यानी कि ये इस तरफ के ये जो है, ये डाउन साइड के जो है ये पुट्स होते हैं, पुट का होता है ये वॉलेटिलिटी। और ये जो हायर साइड है ऊपर का साइड का, कॉल का होता है। कॉल के आईवीज दिखा रहे हैं ये सारे कॉल के आईवीज हैं, और ये पुट के आईवीज हैं। और ये लोएस्ट आईवी जो है एटीएम का, जनरली एटीएम के पास होता है, तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है, एटीएम यहाँ पे है, तो ये लोएस्ट आईवी एटीएम के बहुत क्लोज होता है जनरली, तो ये दिखाएगा। और ये जो है फेयर प्राइस, यानी कि यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक है, इसके पास आसपास जो भी स्ट्राइक होगा वो एटीएम स्ट्राइक रहेगा 24/7। तो ये 24/650 है, बेसिकली 24/650 एटीएम स्ट्राइक है, ये एटीएम स्ट्राइक के पास रहेगा, ये फेयर इससे प्राइस। व्यू ले सकते हैं कुछ? व्यू अभी अभी बताता हूँ, अभी डिस्कस करता हूँ। ये क्या है कि ये जब ऐसे जब दिखाता है, तो ये यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ गया है, और यानी कि और ये नीचे मूव हुआ है, तो यानी कि बेरिश है, तो ये ऐसे दिखाता है। ये पुट साइड के जो है, पुट साइड के वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखा रहे हैं ये। हाँ, इसके पहले एक मिनट, ये जो है, ये जो डेटा पॉइंट्स है, ये जो कर्व है, ये T-1 मतलब पिछले दिन का कर्व होता है। ये आज का कर्व है, ये जो आप देख रहे हैं ये आज का कर्व है। ये T-1 यानी कि ये पिछले दिन का कर्व, और ये डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि आज से 2 दिन पहले का, या आज से 3 दिन पहले का। तो ये ऐसे कर्व्स होते हैं जनरली। आप पिछले दिन का कर्व लगा लीजिए, तो ये आपको डिफरेंस पता चलेगा कि क्या हो रहा है ये। तो यानी कि ये आपको ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पुट के साइड बहुत ज्यादा डिफरेंस है कॉल के साइड से। और ये आपको एकदम शॉर्ट में अगर पता करना है, तो यहाँ पे आईवी स्क्यू का नंबर देख लीजिए, यहाँ पे ये नंबर आपको ये दिखाएगा कि किस तरफ स्क्यू है। प्लस पॉजिटिव, अगर ये हो, पॉजिटिव हो, यानी कि पुट साइड में ज्यादा प्रीमियम्स है कॉल साइड के हिसाब से। और जनरली ऐसे ही होता है मार्केट, क्योंकि पुट बाय करते हैं लोग हेजिंग के लिए, तो मार्केट अगर गिर रहा है तो हेजिंग के लिए, तो जनरली पुट में थोड़ा प्रीमियम होता है। तो पुट के प्रीमियम ज्यादा होने से उसमें आईवी जनरली ज्यादा होता है। तो ये आपको
परसेंटेज ये दिखाएगा आपको। और ये परसेंटेज अगर बहुत डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, यानी कि 10%, 12% हो, तो फिर वो ट्रेडेबल हो जाता है। तो आप पुट के साइड सेलिंग कर सकते हैं। तो यानी कि पुट के साइड बहुत ज्यादा प्रीमियम्स हैं। तो ये, लेकिन ये कैसे दिखाते हैं आप, ये आईवी स्क्यू, ये तो आईवी स्क्यू का चार्ट है, वॉलेटिलिटी स्माइल कहते हैं इसको। तो इसका ट्रेंड देखिए, ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूं आपको, तो यानी कि इसका डिफरेंस, यानी कि कितना प्रीमियम है, पुट के प्रीमियम्स कितना ज्यादा है कॉल के प्रीमियम से, तो ये दिखाता है। तो इसका ट्रेंड आपको देखने का है। तो आप ये आईवी, वो उस बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको ये ट्रेंड दिखाएगा। और ये जब बहुत ज्यादा हो जाता है, 10, 11, 12% के ऊपर हो जाता है, यहाँ तो ये तो ओके है, ये नॉर्मल है। तो 12, 15% जब हो जाता है, या फिर ये नीचे से बहुत ऊपर गया हुआ है, तो वो ट्रेडेबल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पुट के साइड सेल कर सकते हैं। लेकिन सीधे आप पुट के साइड अगर करेंगे तो वो आईवीएसक्यू का ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि उसमें हेज कुछ नहीं होता है। अगर मार्केट फिर नीचे गया तो आपको उसमें लॉस ही होगा। तो जनरली कैसे करते हैं कि वो रेशियोज यूज करते हैं, रेशियो ट्रेड्स यूज करते हैं, यानी कि अ, अब एक मिनट वापस उस चार्ट पे जाके एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो डिफरेंस है, आउट ऑफ द मनी बहुत ज्यादा है, इन द मनी कम हो जाता है। तो रेशियोज में क्या होता है कि आप पुट, ज्यादा पुट सेल कर सकते हैं और कम पुट्स बाय कर सकते हैं। तो यहाँ के पुट्स जो हैं बेटर प्राइस्ड होते हैं, रीजनेबली प्राइस्ड होते हैं इन पुट्स से। ये आउट ऑफ द मनी पुट्स एक्सपेंसिव है, यही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कल के हिसाब से इसमें प्रीमियम ज्यादा है, इसमें उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं प्रीमियम्स आज के दिन। यहाँ पे आउट ऑफ द मनी बहुत इंक्रीज हुए हैं। तो ये अभी काफी उतना ज्यादा नहीं है, तो ये और भी ज्यादा जब डिफरेंस हो जाता है तो तब आप वो कर सकते हैं। और ये जनरली कब होता है कि पुट्स में प्रीमियम्स कब ज्यादा होते हैं, मार्केट जब गिरता है। तो जनरली स्पीकिंग पोजिशनल के लिए बहुत जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो जब मार्केट जब गिरता है तब पुट सेल करते हैं। तो एक्चुअली वो ये थिंकिंग में नहीं आता है कि आप जब थिंक करते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है तो रिस्की हो जाता है पुट सेल करना। तो लेकिन वो टाइम पे वॉलेटिलिटीज बहुत ज्यादा होते हैं, प्रीमियम्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो एडवांटेज होता है। तो वो हेज के साथ कर सकते हैं आप। तो वैसे टाइम पे मार्केट जब गिरता है तब पुट सेल करने में थोड़ा एज होता है उसमें। तो वो यहाँ पे स्क्यू के हिसाब से अगर देखेंगे तो एट द मनी के पास उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि एट द मनी के पुट प्रीमियम ज्यादा बड़े नहीं है, तो आप उनको बाय कर सकते हैं और आउट ऑफ द मनी को सेल कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा बेटर रहेगा जब ये, तो और भी थोड़ा बेटर हो जाएगा, ये और भी ज्यादा हो जाएगा, 10, 11, 12% हो। और अब कभी कभी मार्केट जब गिरता है तब आप देखेंगे 18%, 20% भी जाएगा ये। तो वो टाइम पे तो पुट में बहुत ज्यादा स्क्यू हो जाता है, पुट के प्रीमियम्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो उस टाइम पे वो ट्रेड्स बहुत यूजफुल हो जाते हैं, वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उसमें। और हिस्टोरिकल देखेंगे, देख सकते हैं क्या कुछ, 4 अगस्त का देखते हैं। इस नहीं, ये पॉजिटिव था। आप देखेंगे कि कॉल साइड में बहुत ज्यादा है, पुट साइड में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। बुलिश के टाइम बराबर उल्टा होता है, बुलिश के टाइम उल्टा होता है। कॉल में प्रीमियम यहाँ पे बहुत बड़ा है आज, एटीएम के साइड ज्यादा नहीं है। तो आप ओटीएम सेल कर सकते हैं कॉल्स, और एटीएम के पास के बाय कर सकते हैं। तो ये बुलिश के दिन ऐसे होता है। तो ये ऑपोजिट ट्रेड्स होते हैं, ये पूरे ऑपोजिट अगेंस्ट द ट्रेंड होते हैं, ये ट्रेंड के साथ नहीं होते हैं, ये अगेंस्ट द ट्रेंड होते हैं। तो किसी बेरिश दिन, एक मिनट आप, मैं चार्ट देख लेता हूँ किस दिन बेरिश था मार्केट। बेरिश के दिन का एग्जांपल लेते हैं। सर वेल, इसमें लो प्राइस और फेयर प्राइस एक बार समझा दीजिए। लो फेयर प्राइस तो समझ में आता है, लो प्राइस क्या है? लो प्राइस मतलब वॉलेटिलिटी सबसे लो कहाँ पे है, सबसे कम वॉलेटिलिटी आज कहाँ पे है, वो दिखा रहा है। यानी कि वो जनरल, तो मार्केट उधर लो प्राइस की तरफ मूव करेगा कि फेयर प्राइस की तरफ? वो ऐसे कुछ, फेयर प्राइस मतलब मार्केट वहीं पे है बेसिकली, एट पास में है वहां पे मार्केट बेसिकली। तो ये तो मार्केट कहाँ मतलब पे है सर वही वो दिखाएगा। मतलब
मतलब कि वो फेयर प्राइस जो है लो प्राइस की तरफ आएगा धीरे धीरे। जरूरी नहीं है सर, ये मैंने ऑब्जर्व तो किया नहीं है। जनरली एट प्रेजेंट ये ऐसे दिखा रहा है कि एटीएम स्ट्राइक यहाँ पे है एक्चुअली। एटीएम स्ट्राइक यहाँ पे है, लेकिन ये लो वॉलेटिलिटी, सबसे लो वॉलेटिलिटी जो है वो इस स्ट्राइक पे है यहाँ पे। अब मार्केट किस तरफ जाएगा? सर ये वही, नहीं जी सर कंटिन्यू। हाँ, नहीं तो ये क्लियर है आपको क्या? ये लो प्राइस और जी सर लो, जी सर। हाँ, वॉलेटिलिटी का है ये। हाँ, एक दिन ना 12th का देख लेता हूँ मैं एक बार, एक मिनट। ट्वेल्थ के दिन नीचे था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, फिर भी उतना ज्यादा नहीं है। 12th के दिन भी उतना ज्यादा नहीं था। आप देख सकते हैं, आप जाके देख लीजिए, इस दिन देख लीजिए, इस दिन देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा। 13 पॉइंट है सॉरी। सर, लेटेस्ट में ज्यादा दिखाई दे रहा कि 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है इस क्यों। हाँ बराबर, मेरे ख्याल से 13.8। 8% है, 8% है। हाँ जी। मंथली में शायद ज्यादा होगा। मंथली में है। मंथली में, राइट, मंथली में ज्यादा है, 13% है। तो ये कॉल्स के हिसाब से पुट्स के प्रीमियम्स कितने ज्यादा है वो दिखाता है, वो दिखाता है। तो ये क्लियर है इसके बारे में? हाँ, यहाँ पे मंथली में ज्यादा है। मंथली में देखेंगे आप, 13% था इसके पहले, अराउंड 13% पे तक जाके आ रहा है ये। तो यहाँ पे पुट के प्रीमियम्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ जब प्रीमियम्स बहुत ज्यादा होते हैं तो बड़े बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे पुट्स ट्रेड कर लेते हैं वो, या जो भी है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम जितना ज्यादा हो तो यहाँ पे वो लोग एक्चुअली ट्रेड्स लेते हैं। लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं ट्रेड्स, तो ऐसे डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि पुट सेल कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से पुट, यहाँ से तो ऊपर गया है, लेकिन आप देखेंगे आगे जाके गिर गया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी हो सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं जनरली। तो स्ट्रक्चर्ड मतलब ओटीएम अगर उन्होंने सेल किया है क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है, तो एटीएम बाय कर लेते हैं वो लोग। तो हेज होता है जनरली। और शायद वो लोग क्या करेंगे कि ज्यादा ओटीएम सेल करेंगे और इन द मनी कम हेज करेंगे, यानी कि 2:1, 3:1 ट्रेड हो सकता है। क्योंकि वैसे भी एटीएम के प्रीमियम ज्यादा होते हैं, तो वो लोग कम क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे और ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेल करेंगे। तो वैसे ट्रेड्स। सर, एक हाँ, 12 मई का दिखाइए, उस दिन है ना काफी गैप अप हुआ था ओपनिंग। 12th में एंड कैसा हुआ, ये तो एंड दिखाएगा आपको हिस्टोरिकल। एक मिनट, 12th में, काफी हाँ, बहुत ज्यादा है स्क्यू, बहुत ज्यादा है। क्लियर जी दिखा सर। नहीं रहा है ये। ओके, बहुत मूव हुआ था ऊपर, इसीलिए शायद पुट का स्क्यू बहुत ज्यादा है। बहुत सरप्राइजिंग है एक्चुअली, बहुत सरप्राइजिंग है। पुट का स्क्यू बहुत ज्यादा है। पुट के ट्रेड्स यहाँ पे तो कर सकते हैं वो बेसिकली। नेक्स्ट डे शायद कॉल में बात बनी होगी। नेक्स्ट डे कैसा था उस पर भी डिपेंड करता है। एक मिनट, हाँ, मैं चार्ट देख लेता हूँ एक बार। डेली चार्ट। 12th में पता नहीं, ये मेरे ख्याल से ये ठीक है, ज्यादा नीचे तो आया नहीं, तो ये ट्रेड प्रॉफिटेबली रहा होगा उनके लिए। एक्सपायरी के दिन के तो वापस आ गया, और उनके हाँ, प्रीमियम्स। 4 से 3 पॉइंट नीचे था। हाँ, ये क्या है कि आपको अगर किसी ने अगर वो ट्रेड भी ले भी लिया, तो इतने प्रीमियम ज्यादा है पुट में,
तो पुट के प्रीमियम्स बहुत और अच्छे मिल गए होंगे उनको, और वो कॉल अगर के यहाँ पे मिलोगे सर? होल्ड करते तो यहाँ पे इस दिन तो एक्सपायरी के सर दिन तो प्रॉफिटेबल रहता। हाँ 12 तारीख को तो कॉल के मिलोगे ना ज्यादा प्रीमियम उनको? नहीं, 12 तारीख, आप 12 तारीख का तो ये एंडिंग का दिखा रहा है, वो हाँ प्रॉब्लम है। हाँ। तो एंडिंग का दिखा रहा है तो उसमें तो आपको पता नहीं चलेगा। एक, हाँ एक मिनट, हाँ स्क्यू ट्रेंड में पता चलेगा, एक मिनट। स्क्यू स्क्यू ट्रेंड ऐसे क्यों दिखा रहा है ये? 21% दिखा रहा है। एक्चुअली 9th के दिन बड़ा सा ट्रेड था वहां, उस टाइम पे तो 36% गया था, 36%। वो ट्रेड वैसे ले बारह लेते को, तो ये 12 को गैप अप हुआ था, 13 को डाउन हुआ आया, तो 12 को तो कॉल के प्रीमियम बढ़ गए होंगे ना? हाँ कॉल के प्रीमियम बढ़ गए। 13 तारीख को उनको, क्योंकि 13 तारीख को 403 पॉइंट के लगभग गिरावट आई थी। हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कॉल का थोड़ा ही होगा उनका ट्रेड। 12th के दिन, बारह एक बारह इस दिन पुट का ट्रेड लेंगे वो लोग। पुट में थोड़ा उनको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन वो बाय एक्सपायरी तो उनको प्रॉफिटेबल ही हुआ होगा, और पुट के इतने अच्छे प्रीमियम्स मिले होंगे उनके, तो ये तो कर सकेंगे वो हैंडल, जी जी जी। प्रॉब्लम नहीं है। कॉल में तो वो लोग थे ही नहीं, कॉल में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि स्क्यू इतना ज्यादा था। एक्चुअली 9th के दिन आप देखिए, 9th के दिन मेन ट्रेड था, जी इतना बड़ा स्क्यू था, इतने बड़े प्रीमियम्स थे 9th के दिन। यहाँ मेरे से ख्याल से बहुत ज्यादा लोग थे। लोग और डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत ही ज्यादा थे पुट के। जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो जिन्होंने भी वो ट्रेड लिया होगा, ज्यादा पुट सेल किए होंगे और एट द मनी पुट बाय किया होगा, वो तो प्रॉफिटेबल ही रहा होगा वो ट्रेड। वही स्ट्रक्चर वैसे होता है, वो ट्रेड वैसे ट्रेड करते हैं वो लोग, स्ट्रक्चर वैसे कर लेते हैं। डाइवर्जेंस होना चाहिए प्राइस के और इसके उसके। हाँ, स्क्यू स्क्यू बहुत बड़ा होना चाहिए, तो तो फिर होता है। लेकिन ये तो इंट्राडे नहीं होगा ना? ये पोजिशनल होते हैं ट्रेड जी। इंट्राडे इंट्राडे में ट्रेड्स मोस्टली वो स्क्यू उतना डिफरेंस नहीं आएगा एक दिन में, नहीं, तो पोजिशनल होता है ट्रेड, जनरली पोजिशनली पोजिशनल ही देखो होता तो है। ये जो पुट के प्रीमियम का चार्ट जो दिखा है, वो तो इंट्राडे नहीं होगा ना? कौन सा वाला, सॉरी? वो पुट का प्रीमियम वाला चार्ट हाँ कहाँ पे दिखाया मैंने अभी अभी? अभी वो, ये वाला, ये वाला? हाँ नहीं हाँ नहीं, ये पुट प्रीमियम नहीं है, ये जो है ये स्क्यू है। ये जो स्क्यू मतलब, ये जो नंबर है स्क्यू का हाँ। मतलब पुट के प्रीमियम जो है कितने परसेंट ज्यादा है कॉल के प्रीमियम से, ओके। आउट ऑफ द मनी, पुट के आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स, कॉल ठीक के है। आउट ऑफ द मनी प्रीमियम से कितने एक्सपेंसिव है, कितने ज्यादा प्रीमियम्स है उसमें। 8% ज्यादा प्रीमियम्स है। आप अगर देखेंगे ऑप्शन चेन, अगर जाके देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। अभी जो 8% दिखा रहा है लेटेस्ट, 8% दिखा रहा है, उसका मतलब ये है कि आप अगर ये जो आईवी यहाँ पे देख रहे हैं आप, 11% अंदाजा आउट ऑफ द मनी, पुट के आउट ऑफ द मनी 11% ऐसे है, और ये आप कॉल के आईवीज देखिए कम है, तो ये कितने कम है? पुट के प्रीमियम्स 8%, अंदाजा 8% कॉल के आउट ऑफ द मनी प्रीमियम से ज्यादा है। ये बता रहा है, ये नंबर आपको ये बता रहा है कि ये वाले जो कॉल के आउट ऑफ द मनी आईवीज हैं, और आईवीज ज्यादा मतलब प्रीमियम्स ज्यादा, तो आईवीज 8% ज्यादा है कॉल के आउट ऑफ द मनी आईवीज से, तो ये कंप्यूटेशन जो है ये है। और ये भी वही दिखा रहा है आपको, ये जो है ये 8% ज्यादा, ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है उसके हिसाब से, समझ गया? तो ये वही है। और ये जो है अभी कैसे चेंज हो रहा है, वो 8% जो है ये अभी है, अभी यहाँ पे जाके 8% कुछ है वो, तो ये पूरे कैसे लास्ट 5 दिन में वो कैसे मूव कर रहा था वो दिखा रहा है। मुझे लास्ट 2 दिन में देखना है तो ऐसे देख लीजिए, तो लास्ट 2 दिन में वो जो 8% जो अभी आप देख रहे हैं तो वो कैसे था, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा थे प्रीमियम, 9% कुछ थे, यहाँ पे 11% थे। 13 तारीख के दिन, 13 तारीख के दिन मार्केट क्लोज होने के 20 मिनट पहले
3.10 के आसपास 11% था वो डिफरेंस, यानी कि पुट के प्रीमियम्स 11% ज्यादा थे कॉल के प्रीमियम, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स के हिसाब से ये दिखाता है। तो ये आपको वो दिखा रहा है, ये नंबर दिखाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, स्टैडल के बारे में। किसके बारे में? स्टैडल। स्ट्रैडल। हाँ। ये तो टूल, इस टूल के बारे में कुछ क्वेश्चन? नहीं नहीं हाँ, तो नहीं फिर वो मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, 1 मिनट मैं नोट कर लेता हूँ, 1 मिनट। वो नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ सर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ओके। इसमें सर ये आईवीएस क्यू में तो नीचे तो टाइम दिखा रहा है, तो टाइम वाइज है? टाइम नहीं है, ये स्ट्राइक प्राइसेस है ये। नहीं नहीं, हाँ वो आईवीएस क्यू ट्रेंड करते हैं ना। हाँ हाँ, आईवीएस क्यू ट्रेंड, ओके। हाँ, हाँ, वो तो दिन, पूरा दिन में कैसे चेंज हो रहा है आईवीएस क्यू। मतलब वो टाइम वाइज दिखा रहा है, मतलब हाँ, टाइम वाइज ये दिखाएगा। आपको लगे कि 2 बजे प्रीमियम हाइक हुए तो हम सेल कर सकते हाँ, अब ये ओपन करके रख दीजिए चार्ट, आपको दिखेगा। देखेंगे कभी कभी मार्केट अगर गिरा तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़ जाएगा स्क्यू, दिन में बढ़ जाता है। वो टाइम पे पुट के प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं, तो सेलर्स एक्चुअली वही टाइम पे सेल करते हैं, बड़े बड़े सेलर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वही उसी टाइम पे सेल करते हैं। ठीक है, ये आईवी स्क्यू के बारे में हो गया। तो बाकी के आईवी के टूल्स, 1 मिनट मैं फटाफट कवर कर लेता हूं इसको। आईवी चार्ट, ये बेसिकली आईवी का चार्ट है। तो मेरे ख्याल से उतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, सिर्फ आपको देखने के लिए कि आईवी कितना हाईएस्ट कितना था, कम कितना था। तो जितना ज्यादा रहेगा उतना वॉलेटाइल रहेगा, जितना कम रहेगा उतना स्टेबल रहेगा। तो ये सिर्फ आईवी दिखाएगा, हिस्टोरिकल आईवी पूरा दिखाएगा ये। अब इससे ज्यादा यूजफुल आपको आईवी और एचवी रहेगा। सेम वही लेंगे, एचडीएफसी बैंक, 6 महीने का लेंगे। तो ये मैंने हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 20 डेज, यानी कि पिछले 20 दिन का हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कैसा था, और आईवी क्या था, उस दिन का आईवी क्या था, ईच डे का आईवी रहेगा, और उसके हिसाब से ये रहेगा। तो जब भी ये हिस्टोरिकल आईवी के आईवी जो है हिस्टोरिकल आईवी के ऊपर हो, तो यानी कि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, प्रीमियम्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि आईवी बहुत ज्यादा है इसका, यानी कि इसका। और आईवी हमेशा सिक्लिकल होता है, साइकिल, यानी कि साइकिल्स के हिसाब से चलता है आईवी। ये हिस्टोरिकल आईवी से ज्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसे चलते रहता है। अगर बहुत कम रहा, ये डिफरेंस बहुत कम रहा, तो इसका मतलब आगे जाके एक एक्सप्लोड होगा, आईवी एक्सप्लोड होगा। यानी कि अब मार्केट किस तरफ जाएगा वो नहीं दिखाएगा ये। जनरली आईवी जब शूट अप होता है, जनरली मार्केट अगर नीचे गिरा, यानी कि स्टॉक नीचे गिरा, तो ही फिर सडन बढ़ता है। लेकिन ऐसे अभी कोई अर्निंग्स हो, कुछ हो, तो फिर ये बढ़ जाता है। तो ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि मार्केट गिरने से ही होता है। इंडेक्स का वैसे हो सकता है, या फिर इंडेक्स में बहुत बड़ा कुछ न्यूज आया और बहुत बड़ा गैप अप हुआ, तभी भी ऐसे बढ़ सकता है। लेकिन इंडेक्स में जनरली अगर मार्केट गिरेगा तो फिर आईवी बढ़ेगा, और ये हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी के ऊपर जाएगा। मगर स्टॉक्स में क्या है, अर्निंग्स के टाइम जनरली ऊपर जाता है, तो अर्निंग्स के टाइम पे अच्छा आप ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेड हो, कैलेंडर हो, या ऐसा कुछ ट्रेड हो, तो वो कर सकते हैं, यानी कि नियर वाला सेल करके फिर दूर वाला बाय कर सकते हैं। क्योंकि नियर वाला, ये करंट मंथ का एक्सपायरी का आईवी बहुत बढ़ जाएगा, और नेक्स्ट मंथ का नॉर्मल रहेगा ही। तो ये करंट मंथ का बेच सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का बाय कर सकते हैं, सेम स्ट्राइक का कैलेंडर ट्रेड होता है। तो जनरली अर्निंग्स के टाइम वैसे करते हैं हम लोग। तो एकदम बस 1 2 3 दिन का ट्रेड होता है वो, अर्निंग्स के थोड़ा पहले इनिशिएट करते हैं, अर्निंग्स के बाद सेम डे ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है, कि आईवीज गिर जाते हैं अर्निंग्स के बाद। अगर वो इवेंट खत्म हो गया तो उसके बाद कोई सरप्राइज नहीं होता है मार्केट में। अगर कुछ सरप्राइज होने वाला है तो ही फिर वो बढ़ेगा, ऐसे अर्निंग्स के टाइम उसीलिए बढ़ता है। तो अर्निंग्स खत्म हो गए तो आईवी नीचे आ जाएगा, तो फिर आप वो ट्रेड क्लोज कर दे सकते हैं। तो वो कैलेंडर ट्रेड्स अर्निंग्स के टाइम्स आप देखेंगे जनरली वही रहेगा, ये मोस्टली वही रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं इंडेक्स का एक बार। हेलो सर।
हाँ बोलिए। सर आप एक एक बार आपने सीपी डिफरेंस का एक स्ट्रेटेजी बताई थी ऑप्शन बाइंग के लिए, जो हाँ जो आपने बताया था, बहुत पहले बताया था कि आपके फ्रेंड्स भी यूज करते हैं उसको। हाँ, राइट राइट। अब मुझे याद उतना नहीं आ रहा है। काफी काफी लोगों को, मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूज करते हैं, टोटल पी हाँ सी अभी भी यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी राइट। सर। हाँ। मुझे जरा फिर से बता दीजिए सर प्लीज। अब मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा है, मुझे वो वो जाके सर देखना पड़ेगा। ऑप्शन के अंदर दोनों चार्ट लगाना होता है, पी का भी लगाना होता है और सी का भी लगाना होता है, और 9:30 बजे आप फिर वो मेरे डिफरेंस। ख्याल से वो ऑप्शंस वाई ब्रेकअप का है वो स्ट्रैटेजी। हाँ जी सर। हाँ, मैं एक बार देखता हूँ सर, एक मिनट, इसके बाद डिस्कस करेंगे, एक दो तीन पॉइंट्स है उसके बाद। ठीक है सर, थैंक यू। एक मिनट नोट कर रहा हूँ मैं, ब्रेकअप। ओके। हाँ, ये इंडेक्स का है, एक साल का आईवी और एचवी का चार्ट है। और ये जो एचवी है, वो आप को ये लगाना है कि मार्क एक्सपायरी कितने दूर है उसके हिसाब से। अगर आप 10 दिन है यहाँ का, अगर लास्ट लेटेस्ट का एनालाइज कर रहे हैं, तो फिर आप 10 डेज का लगा लीजिए। अगर 10 डेज के हिसाब से आईवी कैसा है देख लीजिए। 20 डेज का, 10 डेज में अगर एक्सपायरी हो, तो एक्सपायरी कितना दूर है उसके हिसाब से ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, 10 दिन या 20 दिन। तो अगर आप समझेंगे कि आप एक्सपायरी अब कितना है, 10 दिन, अप्रोक्सीमेटली 10-12 दिन, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ऑलमोस्ट सेम दिखा रहा है आपको, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखा रहे हैं। यानी कि एट प्रेजेंट आईवी एचवी के नीचे है, यानी कि आई प्रीमियम्स काफी कम है। तो आप स्ट्रैडल वगैरह बेचेंगे तो आपको प्रीमियम्स काफी कम रहेंगे इस बार। और स्ट्रैडल सेल करने के लिए ऐसा टाइम अच्छा होता है, यानी कि आईवी दोनों एचवी से 10 डेज 20 डेज से ऊपर हो, तो फिर यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा होते हैं। तो अब एक साल का भी अगर देखेंगे, तो ये निकालता हूँ मैं, ये एक रख लेता हूँ। तो ऐसे टाइम्स पे जब बहुत ऊपर होता है, तो फिर वो बेटर होता है, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी रहेगा। तो ऐसे पॉइंट्स पे आपको स्ट्रैडल के प्रीमियम्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और ये जब नीचे होता है बहुत कम, तो यानी कि, तो ये फिर बहुत कम है, आईवीज बहुत ही कम है यहाँ पे। तो इसका जब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो उसका मतलब ये है कि आईवी एकदम एक्सप्लोड होकर ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे चलते रहता है आईवी। ये कभी क्लोज आ जाएगा, फिर दूर जाएगा, क्लोज आ जाएगा, वो कभी ऊपर जाएगा, फिर दूर हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तब वो ट्रेडेबल होता है। यानी कि बहुत एचवी के बहुत ऊपर जाता है तो भी ट्रेडेबल होता है, यानी कि प्रीमियम्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छा होता है। बहुत नीचे जब होता है, यानी कि बहुत एचवी से जो बहुत डिफरेंस हो जाता है, बहुत नीचे आ जाता है, तो प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं। तो कैलेंडर्स, डायगनल्स, डेबिट स्प्रेड्स, ये सब अच्छे चल जाते हैं क्योंकि प्रीमियम्स कम मिलते हैं आपको। तो आप बाय करेंगे तो आपको टाइम डी के उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि अब ऐसे टाइम पे अगर आप ऑप्शन बाय करेंगे, तो मार्केट कहीं भी गया भी नहीं, मार्केट मूव भी नहीं होगा, लेकिन ये आईवी नीचे आ जाएगा तो आपके प्रीमियम्स गिर जाएंगे। तो आप ऑप्शन बाय करके बैठे हैं और मार्केट मूव भी नहीं हुआ है और प्रीमियम्स गिर जाएंगे, तो आपको सीधा लॉस दिखेगा तभी इमीडिएटली। और मार्केट उसके बाद आपके अगेंस्ट गया तो फिर लॉस और भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे करेंगे तो मार्केट अगेंस्ट भी जाएगा तो आपको एटलीस्ट आईवी का हिट नहीं होगा आपको। तो आईवी बढ़ेगा तो आपको फिर प्राइस उसमें प्रीमियम थोड़े बढ़ेंगे। तो आप अगेंस्ट भी जाएगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, उतना हिट नहीं होगा आपके आपके प्रॉफिट या लॉस में, या लॉस के साइड उतना ज्यादा नहीं जाएगा। तो वो होता है। और ये क्या, ये सब जो है, ये जो आप कंसिस्टेंटली आप बहुत ट्रेड्स लेते रहते हैं, तो इसका फर्क आपको बहुत दिखेगा। तो आप एक ट्रेड लेंगे और आप यहाँ पे लेंगे और ये आप नहीं, प्रीमियम्स आपको आपको शायद वो ट्रेड प्रॉफिट या लॉस जैसे भी एंड अप हुआ हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो उतना एडवांटेज नहीं था। तो वैसा नहीं चलता है वो। आप जब कंसिस्टेंटली एक टाइप ऑफ ट्रेड लेते रहते हैं, स्ट्रैडल ट्रेड्स हो या फिर कैलेंडर्स हो, तो एक एक तरह के ट्रेड्स आप कंटिन्यूसली लेते रहते हैं, मंथ आफ्टर मंथ, वीक आफ्टर वीक, तो फिर आपको उसमें डिफरेंस लगेगा। आप जब प्रॉफिट और लॉस आपका देखेंगे और वो आईवीएचवी चार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको वहां पे आपको लगेगा कि जब भी ट्रेड्स, ऐसे टाइम पे डेबिट ट्रेड्स आपने लिए और कैलेंडर या डायगनल लिए, तो काफी प्रॉफिटेबल रहे होंगे वो ट्रेड्स, और बहुत कम लूजिंग ट्रेड्स रहेंगे।
और सेलिंग सर में यहाँ पे जब जो कैलेंडर लेंगे वो मतलब कि नेक्स्ट मंथ का बाय करेंगे या सेल करेंगे? पास में का सेल करेंगे, नेक्स्ट का बाय करेंगे। ठीक है सर। हाँ, जनरली आईवीज कम होते हैं तब कैलेंडर्स आप लेते हैं, क्योंकि आईवी जब एक्सप्लोड होता है तो दोनों साइड भी एक्सप्लोड हो जाता है तो चलेगा, सेलिंग साइड पे भी एक्सप्लोड होगा, लेकिन कॉल्स है वो बाइंग साइड पे और भी ज्यादा बढ़ेगा आईवी, तो वो लेकिन कवर हो सर जाता है। सर अगर ये आईवी कम रहेगा तो ये वीक का तो कम रहेगा ना, नेक्स्ट वीक का तो बड़ा भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन ये जो आप करें, ये जो ट्रेड्स जो होते हैं, आप देखेंगे कि आईवीज जनरली जब बहुत एक्सप्लोड होते हैं, जब बहुत बढ़ते हैं, तो जो आगे के मंथ के होते हैं या आगे के एक्सपायरी के, वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये काम को तब आएगा जब एक्चुअल ये यहाँ पे आप ऐसे कुछ बाय करेंगे और उसके बाद आईवी बढ़ता है, तो आपको अ, इस वाले महीने में लॉस होगा, लेकिन अगले वाले महीने में प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहेगा उसका। अब यहाँ भी आप देखेंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे, अब ये 21st का आईवी देखिए, अराउंड 10 है, और अराउंड 10 पॉइंट चेंज है, 10.38, और अब 28। अब ये डिफरेंस ज्यादा नहीं है। एक मिनट, अभी आगे के इसमें आते हैं, 30 सितंबर में जनरली क्या है कि इसमें अभी एट प्रेजेंट उतना क्लियर नहीं, लेकिन इसमें आपको ज्यादा रहेगा, इसमें आईवी ज्यादा रहेंगे। सॉरी, वेगा वेगा देखना है आपको, इसमें 35 वेगा है, क्योंकि आगे वेगा पे डिपेंड करता है। यहाँ पे वेगा देखिए कितना कम है। वेगा मतलब जब वॉलेटिलिटी आईवी जब इंक्रीज होगा तब आपके ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पे नियर एक्सपायरी में आप 28 का भी लीजिए, नियर में 19 है, और आप नेक्स्ट मंथ का लीजिए, उसमें वेगा कितना है, ये ज्यादा है। तो यानी कि जब भी आईवी बढ़ेगा तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ेगा प्रीमियम, पास वाले एक्सपायरी में कम होगा, पास वाले एक्सपायरी में कम होगा वेगा। वो है उसकी वजह से ये ये काम करता है। कैलेंडर ट्रेड्स जब कम, ये लो आप वॉलेटिलिटी में लेते हैं, तब वो ज्यादा बेटर काम करता है। आप अगर यहां लेंगे तो दोनों साइड कम हो जाएगा, लेकिन किस तरफ आप जो बाय करेंगे अगला मंथ वाला, वो वाला ज्यादा गिरेगा, क्योंकि उसमें वेगा ज्यादा है। तो अब यहाँ पे कैलेंडर लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आईवी तो सॉलिड गिर गया है, एकदम 50% गिर गया है यहाँ पे। तो वो नेक्स्ट मंथ वाला जो बाय किया है आपने, वो प्रॉब्लम होगा उसमें। सर तो एक वेगा चार्ट में ऐसा इसमें डाल दीजिए ना, ऐसा हो सकता है हाँ, क्या? वो नोट किया है सर, वो नोट किया है, वो ग्रीक्स के चार्ट्स बनाने, डेटा तो है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है वो चार्ट ऐड करने के लिए। वो ऐड होना है, वो तो सर करेंगे वो। गामा का भी पॉसिबल है क्या? पूरा ग्रीक्स मतलब सब सारे चार्ट्स आ जाएंगे उसमें। ओके सर। राइट, तो ये कंसेप्ट क्लियर है अभी आईवीएचवी। जी सर। जी, नेक्स्ट आईवीआर आईवीपी स्कैन के बारे में बताता हूँ, फिर चार्ट में जाता हूँ। आईवीआर आईवीपी स्कैन ये पोजिशनल के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी सब ये आईवी वाले ट्रेड्स जो होते हैं, तो ये आपको सेलेक्ट ऐसे करना पड़ता है जब आप ये आईवी आपके साइड में फेवरेबल हो। तो ये ऐसा नहीं होता है कि हर एक ट्रेड में आपको काम आ जाएगा, लेकिन आप जब बहुत सारे ट्रेड्स करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि जो जो ट्रेड्स आपने आईवी आईवीआर आईवीपी या आईवी आईवी वर्सेस एचवी, ये देख के आपने जब डिसाइड किया है आपने, तो वो सारे ट्रेड्स आपको मोस्टली पूरे अच्छे ट्रेड आपको मिले हैं, प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो ये जनरली आईवीआर आईवीपी भी उसी में आता है। तो जनरली जब ये बहुत ज्यादा होता है आईवीपी और आईवीआर, आईवीपी पहले देख लीजिए, वो ज्यादा बेटर स्टार्ट है आईवीआर से। तो ये जब यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपको ये बताता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, लास्ट 1 ईयर में मोस्ट ऑफ द टाइम आईवी, करंट आईवी, इसका जो ये स्टॉक का करंट आईवी है, इससे कम ही था, इससे, सॉरी, एक मिनट, एक पूरे रेंज में आईवीपी 1 ईयर 76% ऑफ द टाइम इस आईवी से कम ही था, यानी कि एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा है, ये दिखा रहा है। ये समझ गया, ये क्लियर समझ लीजिए। यानी कि इसका एग्जांपल लेंगे, आरबीएल बैंक 79 दिखा रहा है अभी। तो ये दिखा रहा है लास्ट 79% ऑफ द ट्रेडिंग डेज इस आईवी से कम ही था आईवी। तो यानी कि आईवी बहुत ज्यादा है। ओनली 21% ऑफ द टाइम लास्ट 1 ईयर में आईवी इससे ज्यादा हुआ है, यानी कि आईवी ये बहुत ही ज्यादा है।
नॉर्मल आईवी आरबीएल आरबीएल बैंक के आईवीज जो होते हैं, लास्ट 1 ईयर में जितने आईवीज देखे हैं, तो उसके हिसाब से एट प्रेजेंट ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में आप अगर ऑप्शंस ट्रेड करेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो ये अराउंड 45 50 से ज़्यादा हो तो बेटर रहेगा। और इसका ऑपोजिट भी वही है। ऑपोजिट जब बहुत कम होता है इसका आईवी, 1% 2% जो भी है दिखा रहा है, तो ये ऐसे दिखा रहा है कि इतने आईवीज कम थे ही नहीं 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में। ऑफकोर्स ये तो है, फिर लिक्विडिटी भी होना चाहिए, तो वो आप वॉल्यूम्स वगैरह ज़्यादा होने चाहिए, वो भी आपको देखना पड़ेगा। सर इसमें एक क्वेश्चन था कि ये आप यहाँ पर करेंगे ना अपना सेंसेक्स, हाँ, तो वो सेंसेक्स में वो जो आईवी और आईवीपी है ना, कभी कभार सॉरी, एक मिनट, माइनस में दिखाते हैं। एक मिनट। प्राइस के पास आप अप डाउन करेंगे ना तो सेंसेक्स आ जाएगा। समझाने में क्या है इसमें? वो कभी आईवी और आईवीपी है ना माइनस में दिखाता है। ये वाला हाँ, तो दिखाना तो नहीं चाहिए। कब देखा आपने? एक्चुअली मैं तो रोज ये चीज देखता हूँ इंट्राडे में तो। देखा क्या आपने? हाँ नहीं, इंट्राडे में नहीं, डे डे एंड में। अगर ऐसा रहेगा तो मैं कभी अगर मुझे दिखा ना तो वापस मैं आपको एक हाँ, स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर देता सर, हूँ। ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, हमारा टीम देख लेगा और देख लेगा क्या इशू है, हाँ फिक्स हाँ। कर लेगा। तो एक बार डेफिनेटली जरूर कीजिए, वो देख लेंगे वो क्या इशू। मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि ये मॉनिटर तो करता हूँ मैं, मुझे दिखा नहीं कभी, लेकिन मैं जनरली डे टाइम में देखता हूँ वो। मैं भी डे एंड में ही देखता हूँ और ये बाइंग और सेलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। राइट, राइट, ठीक है। ये कंसेप्ट समझिए। और इसमें आईवीआर भी वही है, रेंज में आपको रेंज का पर्सन ये दिखा रहा है कि रेंज में कहाँ पे रैंकिंग कैसा आता है इसका। ये आईवी रैंकिंग है ये इसका फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन ये भी 1 ईयर का ही देखता है। लेकिन ये क्या, ये आपको स्पाइक्स अगर इसमें आ जाते हैं तो ये ठीक से नहीं दिखाता है ये, तो इसीलिए आप परसेंटाइल देखिए, परसेंटाइल बेटर होता है, आईवी परसेंटाइल। ये स्टैट जो है ये ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये वाला क्या है, आईवीआर रेंज, ये मैक्सिमम हाई आईवी साल का और मैक्सिमम लो आईवी, उसके हिसाब से कहाँ पे ये दिखाता है। तो ये अगर सिर्फ एक दिन के लिए अगर ये स्पाइक हुआ तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा ये आईवीआर। तो इसीलिए आईवीआर बहुत केयरफुल होना पड़ता है। तो आईवीआर आईवीपी परफेक्ट, अच्छा स्टैट है ये काफी अच्छा स्टैट है। तो एक दिन अगर स्पाइक हुआ तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये रिलायबली आपको बराबर दिखाएगा कि ये इसका आईवी ज्यादा है या आजकल कम चल रहा है। तो यानी कि आईवी कम रहेगा, 40 के नीचे रहेगा, 40 या 30 के भी नीचे रहेगा तो बेटर रहेगा वो। तो उसमें ऑप्शन के प्राइसेस कम है। तो आपको अगर बाइंग, ऑप्शन बाइंग वगैरह के स्ट्रैटेजीज करने हैं तो बेटर है। ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रैटेजीज इसमें आपको काम को ज़्यादा नहीं आएंगे। आपको अगर कवर्ड कॉल बेचना है, आपका कैश में आपका ये स्टॉक है, काफ़ी क्वांटिटी में है, आपको कवर्ड कॉल सेल करना है, तो अगर ऐसा रहेगा, बड़े आईवीपीज रहेंगे, 40 45 के ऊपर रहेंगे, तो इसमें अगर आप कवर्ड कॉल सेल करेंगे, कॉल सेल करेंगे, तो फिर वो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। इसमें प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं, तो आप वो कवर्ड कॉल वाला करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, वो दिखाता है ये। और इसमें आईवीआर आईवीपी चार्ट वही है, बस चार्ट फॉर्म में दिखाता है कि ये लास्ट 1 ईयर में आपको देखना है कि आईवीआर आईवीपी कैसे मूव हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा तो आपको मेरे ख्याल से यूजफुल तो स्कैन रहेगा, तो स्टॉक्स वगैरह फिल्टर करने के लिए इंडिविजुअल किसी स्टॉक का आपको देखने का है कि आईवीज कैसे थे पिछले 1 साल में, तो वो आप जाके देख सकते हैं, 6 महीने में, 1 साल। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आईवीज बहुत कम थे, यहाँ पे आईवीज बहुत कम थे, अब यहाँ पे आईवीज थोड़े ज्यादा है, ये दिखाता है। 55 मतलब बहुत ज्यादा आईवीज है, बहुत ज्यादा आईवीपी। तो ये सारे आईवी टूल्स के बारे में था, सारे के सारे आईवी टूल्स कवर। अब नेक्स्ट क्या था, स्ट्रेडल। सर हाँ, एक बिल्डअप पे क्वेश्चन था सर, एक बिल्डअप मैं नोट करता हूँ, उसके बाद मुझे मुझे एक बार याद ओआई दिलाइए। बिल्डअप पे। ठीक है सर, ठीक। और बिल्डअप, ओके, मैं नोट कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं अब स्ट्रैडल पे जाता हूँ। स्ट्रैडल, हाँ स्ट्रैडल का किसी का डाउट था, हाँ मुझे बोलिए सर, सर। मुझे ये पूछना था कि स्ट्रैडल जब भी चेंज होता है ना, मतलब हाँ, तो वो कहाँ पर एग्जैक्टली पता चलता है? स्ट्रैडल चेंज होता है मतलब स्ट्रैडल का चार्ट चाहिए? स्ट्रैडल का चार्ट बराबर है, लेकिन कभी कभार एंटमनी चेंज हो जाता है। मतलब कभी कभार है ना, क्या होता है कि स्ट्रैडल, मान लीजिए कि सेंसेक्स का 81,000 का चल रहा है हाँ। और मार्केट ऊपर गया, तो हम्म। वो पहले से ही है ना 81,500 का स्ट्रैडल शॉर्ट, मतलब अच्छा सा प्रीमियम निकल जाता है। तो वो भी, वो उसको अपन एग्जैक्टली कहाँ पर चेक कर सकते हैं? ऐसा स्कैन तो नहीं है हमारे पास। मैं एक बार, एक मिनट, हाँ मैं नोट कर लेता हूँ। अ, ऐसा स्कैन तो कुछ एट प्रेजेंट नहीं है सर हमारे पास। तो इंडिविजुअल अगर आप स्ट्रैडल देखेंगे तो ही पता चलेगा, अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं तो ही पता चलेगा उसको, या फिर स्ट्रैडल स्नैपशॉट है, लेकिन मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो है इसमें अगर आप सेंसेक्स डालेंगे, लेकिन फिर आप अगर एक ही इसमें ही ट्रेड करते हैं तो फिर आपको यहाँ से पता चल सकता है। ये देख लीजिए, और यहाँ एटीएम के पास अगर आप मॉनिटर करेंगे तो फिर ये मार्केट ओपन, ये वाला कॉलम जो है, मार्केट ओपन से आपको कितना चेंज हुआ है स्ट्रैडल वो दिखाएगा। सेशन चेंज है, आज के सेशन का चेंज है। तो ये आपको यहाँ पे, लेकिन आप ये अगर इसी सिंबल को मॉनिटर कर रहे हैं तो फिर आपको दिखेगा। अगर आपको कुछ स्कैन चाहिए कि लास्ट 15 मिनट में कौन से स्क्रिप्ट का स्ट्रैडल, एट द मनी स्ट्रैडल सबसे ज्यादा चेंज हुआ है, तो वो वैसा वाला स्कैन नहीं है हमारे पास, मैंने नोट नहीं किया नहीं है। नहीं, वैसा नहीं चाहिए। ये ऐसा बराबर है कि हाँ, इससे तो पता चलेगा आपको कि सेशन, यानी कि आज सुबह मार्केट ओपन से कितना चेंज हुआ है, ये वाला स्ट्रैडल या नियर एटीएम कोई भी स्ट्रैडल आप यहाँ पे देख के पता कर सकते हैं। और हम्म, ये कल के क्लोज से कितना चेंज हुआ है, वीकली चेंज, मंथली चेंज, सारा चेंज पूरा है ये। हम्म, ये आप स्ट्रैडल स्नैपशॉट है, स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल स्नैपशॉट। ठीक है सर। ओके। ऑप्शंस वाइड ब्रेकअप का किसी के पास क्वेश्चन था? ऑप्शंस वाइड ब्रेकअप, हाँ सर, किसी ने पूछा था ऑप्शंस वाइड ब्रेकअप के बारे में। सर आप अवेलेबल हैं? ठीक है, मैं नेक्स्ट टूल जाता हूँ। हाँ, वाई बिल्डअप का क्या था क्वेश्चन? किसी ने वाई बिल्डअप के बारे में अभी पूछा था। हाँ सर, वाई बिल्डअप का क्वेश्चन ये था हाँ। कि जब हम बाइंग करते हैं ना, तो ये बोला जाता है कि अगर जहाँ पे सपोज कोल पे ज्यादा अगर वाई बिल्डअप हो रहा हो, तो जैसे हाँ। कोलाइटर भागने लगते हैं तो वहां पे ब्लास्ट होता है। तो होता क्या है, एक्सपायर पे हम वहाँ पोजीशन लेनी शुरू कर देते हैं, यहाँ से है ना ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि वहाँ लॉस में जाता है वो। तो यही मैं पूछना चाह रहा था कि उसको कैसे ट्रेड किया जाए। यानी फिर से एक बार बताइए, कॉल में बिल्डअप। कॉल में कोलाइटर 4 करोड़ का है और पुट में 2 करोड़ का है। हाँ, तो हाँ। हमें ये लगता है कि जैसे कॉल राइटर यहाँ से भागेंगे ना, अपनी हाँ, पोजीशन हाँ। करेंगे तो ब्लास्ट आएगा। तो इस होप में हम्म। वहाँ पोजीशन बनानी शुरू कर देते हैं, तो ओके, उल्टा ओके। हो जाता है। ओके, तो ओके। इस चीज को कैसे ट्रेड किया जाए। प्राइस वर्सेस ओआई देख सकते हैं आप, वो स्टॉक में मैंने कभी देखा नहीं है, तो कोई भी नहीं स्टॉक का एग्जांपल दीजिए एक बार। सर, निफ्टी का ये ले लीजिए, निफ्टी में मोस्टली होता है ऐसा। नहीं, ये तो काफी कई बार डिस्कस किया है हमने, और ये जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है जी और मार्केट नीचे जाता है, वो यानी कि वो कॉल नीचे जाता है, जी। तो ट्रेड तो होता है, यहाँ से बढ़ तो सकता है, लेकिन अब वो एट द सेम टाइम आपका यहाँ पे अनवाइंडिंग होना पड़ता है। कॉल हम्म। में बड़ा अनवाइंडिंग आना पड़ता है, तभी फिर वो ऊपर जा सकता है। तो वो एक चीज आप देख लीजिए। जी जी। तो ये काफी बिल्डअप आना चाहिए इसमें, और प्राइस भी कम होना चाहिए, हम्म और उसके बाद जब ऊपर जाने लगे तो फिर इसमें हम्म। अनवाइंडिंग आना चाहिए। ये इतना सा नहीं चलेगा, ये थोड़ा थोड़ा और अनवाइंडिंग आया तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट होने का चांस होता है।
ऑफ कोर्स ओके। कई लोग तो ऐसे ट्रेड भी लेते हैं जब ये बहुत सारा बड़ा हुआ है ओआई और ये बहुत नीचे गया है, तो यहाँ पे भी रिवर्स ट्रेड ले लेते हैं ये वीवैप तक के लिए। ओके। और ये यहाँ पे अनवाइंडिंग अगर कंटिन्यू हुआ तो फिर यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है, कई बहुत बार होता भी है। हिस्टोरिकल का भी देखेंगे एग्जाम्पल अगर मिलेगा तो यहाँ पे देखिए ये बिल्डअप है, यहाँ पे बिल्डअप है काफी, और यहाँ पे ये भी नहीं, ये भी ऑपोजिट था एक्चुअली, इसमें बिल्डअप उल्टा कंटिन्यू हुआ है। कई बार देखेंगे यहाँ पे बिल्डअप है, यहाँ पे प्राइस गिरा है और फिर उसके बाद ये भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी हुआ नहीं। ये पूरे सेटअप्स है लेकिन यहाँ पे ट्रिगर नहीं आया है। कभी कई बार आता है, कई बार नहीं आता है। मेन उसका सेटअप यही है कि ओआई बहुत बढ़ना चाहिए और प्राइस बहुत गिरना चाहिए, और उसके बाद अगर अनवाइंडिंग आया है, यहाँ पे एक्चुअली सॉलिड मूव आया था ऊपर लेकिन अनवाइंडिंग हुआ नहीं। ये होता है लेकिन ये ट्रेड फिर उतना रिलायबल होता नहीं है, भी हो भी सकता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर ऊपर जाने लगे तो ये जनरली फिर अनवाइंडिंग हो जाता है, क्योंकि काफी ये लोग यहाँ पे जो जिन्होंने शॉर्ट किया है तो उनके लिए तो पूरा लॉस में चले गया ये ट्रेड, तो ये लोग अनवाइंडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनवाइंडिंग दिखना चाहिए ये ओआई के लाइन पे, ओके। तो फिर ये बहुत और ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो एक्सपायरी के बाद क्लोज जब बहुत पास में आ जाता है एक्सपायरी, तो वो टाइम पे आप देखिए ऐसे ट्रेड्स बहुत दिखेंगे आपको, क्योंकि फिर वहां पे अनवाइंडिंग बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो रिस्क बहुत बढ़ जाता है वहां पे। सर वो जी। 7 अगस्त को आया था एक ऐसा ना, वी शेप रिकवरी हुई थी सर मार्केट में। हाँ तो बहुत आया, वो कॉमन है एक्सपायरी के क्लोज में, हाँ कॉमन है। एक्सपायरी के 7 तारीख को सर, इसकी प्रीवियस एक्सपायरी में 7th के दिन okay। पूरा मार्केट घूम गया था सर। 7 अगस्त था, 7 अगस्त था। 7th एक्सपायरी के दिन ही क्या? हाँ देख लो ना सर एक बार। बहुत एंड पे था तो वो फिर हाँ ट्रिगर होगा भी नहीं, वो तो वो एक इश्यू है। एक मिनट, यहाँ पे आपको वो दिखेगा, ये जो मॉनिटर करने के लिए स्नैपशॉट बराबर है इसके लिए। तो हिस्ट्री, अभी लेट आया तो वो कैप्चर होगा नहीं, वो प्रॉब्लम यहाँ पे था, इस स्ट्राइक में था, मिल गया ट्रेड 24/5। ये था यहाँ पे, ये एग्जांपल बराबर, यहाँ पे बहुत बिल्डअप हुआ, फ्लैट हो गया, यहाँ से अनवाइंडिंग चालू हुआ लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, उसके बाद अनवाइंडिंग होते गया। लेकिन ये ठीक है, ये तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, ये कैच करना बहुत मुश्किल था इसको। लेकिन सेटअप तो था वो अनवाइंडिंग, लेकिन काफी पहले चालू हुआ है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग चालू हुआ था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है बहुत ₹3 तक चले गया था ये। लेकिन है ये ऐसे ट्रेड्स जो होते हैं एक्सपायरी के पास होते हैं, और ये कभी कभी बहुत अर्ली मिल जाते हैं ये ट्रेड्स। इस दिन तो बहुत लेट था, लेकिन सेटअप ये तो था। ये ओपन इंटरेस्ट फुल बिल्डअप होता है, उसके बाद अनवाइंडिंग चालू होता है। मेन ये जब ये ऊपर जाना चालू होता है, उसके बाद अगर अनवाइंडिंग भी आपको दिखा तो फिर ये ट्रेड फिर वहां पे ट्रेड है। और वैसे भी ऑप्शन बाइंग है तो फिर $4, ₹4, ₹5 का ट्रेड होता है तो फिर चल जाता है, ले सकते हैं एक्सपायरी के पास में। हर बार नहीं हो पाता ऐसा। हाँ नहीं, ये यहाँ पे भी था, सुबह सुबह भी होता है, ये भी आप देखिए। इसका मैं जूम इन कर लेता हूँ। सुबह में आप देखेंगे बिल्डअप बहुत ज्यादा हुआ, प्राइस नीचे गया इसका, और फिर यहाँ पे अनवाइंडिंग चालू हुआ, यहाँ पे प्राइस चला, तो ये यहाँ पे भी एक ट्रेड था, यहाँ पे फिर एक्सप्लोड हुआ है। आपको स्टॉप लॉस इसके थोड़ा नीचे लगाना पड़ता है, इसके लो के नीचे ऐसे, क्योंकि यहाँ वैसे भी ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट, ये परफेक्ट सेटअप है ये भी। ये तो एंड का तो पॉसिबली ये बहुत कम लोग शायद ले पाते हैं, लेकिन ये सुबह में जो होता है ये कैच कर सकते हैं। और ये कई बार आता है ये सुबह में, एक्सपायरी के थोड़ा पहले, एक्सपायरी के दिन ही नहीं, एक्सपायरी के पहले भी आता है ये, एक दिन पहले स्ट्राइक। ये सेम, ये वीवैप तक का ही ट्रेड था, ये भी कई लोग लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्डअप बहुत ज्यादा होता है, फिर यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ भी है। बस ये कुछ आपको चार्ट पे टेक्निकल्स और थोड़े फॉलो करने पड़ते हैं तो ये कैप्चर करने के लिए।
सर सेटअप तो पूरा है इसमें। सर नहीं सर, ओआई में प्रॉब्लम प्रॉब्लम ओआई सर ये बिल्ड यहीं पे आती है कि होप में ना बाइंग कर लेते हैं कि 4 रुपए का देखा हाँ, तो बराबर, 10 लोट राइट। बाई कर ली, यहाँ से 10 लोट वो कोलेटर भाग जाएंगे, तो उस होप में हाँ, ना फिर वो नुकसान हो जाता है। बराबर, इजी तो नहीं है सर, ये हाँ, इजी डेफिनेटली नहीं इजी तो नहीं है ये। सर इसमें कितना बिल्डअप होना चाहिए ओआई कि आप रिवर्स के लिए ट्राई करें सपोज? नहीं, वो उतना रिलायबल रिलायबली बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग अलग होता है। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, बहुत तो अच्छा तो सर आपने, मैं इसी इसी सेटअप की बात कर रहा था, आप 9:30 बजे ये सेटअप आपकी जो फ्लैट आपने बताया था ना पहले इस्तेमाल करते थे ये? हाँ, यही है, ये अभी भी करते हैं, ये अभी भी यही करते हैं, हाँ जी सर। वो लोग करते हैं। सर इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो कैंडल है तो उसमें कितना बाय हुआ है और कितना सेल हुआ है, एग्जैक्ट क्वांटिटी, ऐसा कुछ इसमें है? नहीं, इसमें ऐसा बाइंग सेलिंग तो एफएनओ में तो क्या इक्वली होता है ना, तो ऐसे एक साइड ज्यादा एक साइड कम नहीं हो सकता है। हाँ, आपको सिर्फ कॉल वर्सेस पुट हो सकता है, लेकिन एक ही स्ट्राइक में बाइंग कितना सेलिंग कितना वैसे नहीं होता है। बाइंग सेलिंग इक्वल होता है हमेशा, फ्यूचर्स मार्केट ऑप्शंस मार्केट में, तो वो आप बता नहीं पाएंगे, वो तो पता नहीं चलेगा। नहीं सर, वो मिलता है, मतलब उसका कोई, ठीक है चलो। और नहीं सर नहीं, सर एक, वो जो आप वो बोल रहे हैं, टेक्निकल चार्ट पे होता है, वो वॉल्यूम कैंडल से पता चलता है सर। हाँ, वो अलग होता है, वो जो बायर इनिशिएटेड ट्रेड्स सेलर इनिशिएटेड ट्रेड्स होते हैं, लेकिन वो रिलायबल नहीं होता है वो। ठीक है, आप वो आप हाँ वो हमारे यहाँ तो बराबर है। वैसे भी वो डेटा नहीं है, तो आप वहाँ पे वो देख के वो एनालाइज कर सकते हैं। मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ, सर एक फ्यूचर्स में था क्वेश्चन। हाँ, बोलिए। ये जो अपना सेक्टर समरी है ना उसमें, हम्म, अभी जो कोई भी अपन कोई भी सेक्टर पकड़ते हैं तो उसका पहले वाले का एक बार ओपन कीजिए ना, हाँ, किसी का भी, हाँ। तो इसमें ये टोटल पीई सीई ओआई चेंज, हम्म। इसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। जो जनरली क्या है कि इसके इसके हिसाब से पुट साइड में बहुत ज्यादा हो, पॉजिटिव हो, तो फिर और ये जनरली, सॉरी, पुट साइड में यहाँ पे अनवाइंडिंग चल रहा है, और यहाँ पे कॉल साइड में ज्यादा अनवाइंडिंग चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो तो जनरली बुलिश होता है। तो ऐसे होता है ये केस में। यहाँ पे अगर बिल्टअप हो तो बेटर होता है। ये अनवाइंडिंग मतलब ये जो भी पॉजिटिव है, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से, हाँ कॉल में शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, हाँ हाँ। यहाँ पे उसी की वजह से पॉजिटिव है। तो ये इसका एनालिसिस इतना ही है बस। अच्छा। तो ये पॉजिटिव हो टोटल वाला डिफरेंस जो है, पी माइनस सी वाई चेंज, ये पॉजिटिव हो तो बुलिश है, ये नेगेटिव हो तो बेरिश है। तो ऐसा है ये। अच्छा। लेकिन ये आपको थोड़ा एनालिसिस और करना पड़ेगा, और ये कॉल में कितना चलता है, स्टॉक्स में कितना चलता है, मुझे पता नहीं। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये जो भी पॉजिटिव दिखा रहा है, ये पुट साइड बिल्डअप अगर हो तो फिर बेटर होता है। तो यानी कि पुट साइड बिल्डअप यानी कि बुलिश हो सकता है, तो ऐसे हो। लेकिन ये देखना पड़ेगा ये। और दूसरा, ये जो ओआई जो यहाँ पर दिख रहा है एकदम स्टार्टिंग में, हाँ, ओआई चेंज परसेंटेज, तो हाँ, ये एफ एन मतलब फ्यूचर्स के ही दिखा रहा है फ्यूचर्स ना? का है, फ्यूचर्स का है। ठीक है। ओके। या एक बार चैट में देख लेता हूँ किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन हो। ऑप्शन चेंज। Yeah, DBC, there was a question. OI and volume change is already there. We had requested for OTM, ITM price change. Yeah, it is noted, but it is not yet done. I'll think about it. Let me check. I'm noting it down once again. OTM, ITM price change in option chain. Yeah, noted. अच्छा, रेडीमेड स्ट्रैटेजीज अवेलेबल नहीं है सर, किसी ने पूछा था। We do not have ready-made strategies as such as of now. Mayur was asking in chat, can we have list of all FNO stocks, distance in percentage of CMP from highest C? Yes. See, we don't have that way, Mayur. We don't have it that way. There is one tool that is
I would say this is half done. In this, we plan to provide that we want to modify this. At the moment, see what this does is futures scripts near max OI strike. This shows that. So support, when you say support, it means that this is talking about puts. So this shows you scripts that are close to the max put strike, basically, when it means when we say support. So whichever stocks where the distance, see distance from the strike is this column. So these with the minimum distance from strike are the scripts that are very close to the max put OI strike. That is what this is. And when you say resistance, it is the opposite. I mean, we need to modify this and give you both in the same tool. So we need to modify this tool, but we have just not had time to do that. So this again, this tells you resistance means this strike is the call strike, max OI strike, call strike. So and these scripts which are very close to the strike, the max OI strike, which is this strike. This is the distance from strike. This says that which are very close to zero. So these scripts are very close to resistance or the max OI, CUI strike. So this is what we have as of now. We need to modify this and add the proper functionality that you have asked for. So which gives you all the stocks in the same list. For now, you can use this. DBC is asking premium decay, at least you can give options to choose last 5, 15, 10, 15 days. Yeah, lots of computations are there. We will try, but you have to understand that the premium decay is computed from market open. So basically, if we give you 5 days, so it will take from premium decay from 5 days old market open from that point until now. How much decay has happened in these selected options? That is what you want. I mean, it can be done, but yeah, the computations are going to be crazy because there are lots of computations that are done, IV-based adjustments that are done. So we'll have to see if that is possible. So we'll see if it is possible for 3 or 5 days. Yeah, Mayur has already. Straddle premium difference between different expiry in order where we use. Yeah, Mr. Kavesh Patel has asked us straddle premium difference of different expiry with OI and OI change, where to use. I don't know what this is, sir. Can you explain? If you can send me a message, I can check, but we definitely don't have this. Straddle premium difference between two different expiries at the same strike will only tell you that the IVs are different for those different expiries. So I don't know where you can use that, but that is why the difference is going to be there. And of course, time to expiry will be there. So the premiums for the future further expiry will be more. Either if IVs are too high and also then time is more. So time, there's a lot more time for expiry. So the time value also will be there. So I don't know where you can use that, but those are the two reasons why the difference will be there. I don't know how you can use that. I mean, I have not thought about that. Mayur, I've already answered. So right now it is showing CUI premium is higher than premium. CPR वाला setup बताइए फिर से. Sir, are you still there, Dr. Kavesh Patel? I can explain. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay, let me explain then. Let me explain the CPR setup. Yeah, this is a simple setup to identify the trend of the market. So the idea is that now we'll take this reversal over here. What this says is the price has to break above the previous days, the current day and previous days CPR, and also it has to be above
the current day's first hour high. So in this case, you're getting the signal only over here. Sorry, you did not even get it over here because this day it did not clear. Your trigger came only on this day over here. It says it is bullish. Until then, it is not bullish over here. See, it has to break the 2 days CPR and also should close above the day's 1 hour high, hourly high. In this case, only over here, it is touching over here, but it did not close above this. And this is the basically first bar of the next day. So here also, to satisfy, it has to clear these two, where it has already cleared, closed above these two, current day and previous day. And it also has to close above the hourly high. It has not closed above this. So that condition will get satisfied only over here on this bar. It has cleared above current day and previous day, and it has cleared above the first hour high. Over here, now it is bullish. Now bearish will be on this day, it has to close below this, and also on the current day's lower first hour low, it has to close below that. It has not happened here. So to explain that, I'll show this reversal over here, how it will be clear. Downside reversal. 2 days, current day, previous day. Here it closed below previous day's CPR, and it is also closing below the current day's 1 hour low. So here, this is a bearish trigger. So from here, the trend is bearish. And here it had turned bullish where only over here. Over here, this. Again, you will see that, I mean, it's not that this is going to be foolproof. You'll get some buy signals here. Whenever there is a decent pullback, you may get buy signals. And then you'll also get, the idea is that you'll get quick sell signals also. So if you are in a positional trade where you are continuously monitoring the market every day, and then you want to switch to bullish versus bearish, so then you can use a setup like this. यस सर एग्जैक्टली वही करना है. Okay, so this you can. ये 15 मिनट चार्ट है ना सर? हाँ, 15 मिनट चार्ट है. ओके, थैंक यू. 1 आवर भी लगाएंगे तो भी चलेगा. बस फर्स्ट अच्छा. और टू CPRs करंट डे प्रीवियस डे क्लोज होना है, उसके ऊपर क्लोज होना है या नीचे, और फिर हाई या लो भी ब्रेक करना है फर्स्ट आवर का, वो सिग्नल. वैसे मैं पोजिशनल ही करता हूँ, इंट्राडे करता ही नहीं. हाँ, तो फिर ये परफेक्ट ऐसा कुछ चल जाएगा. कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, बस वो चल जाता है. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. ओके, राइट. Let me say any other final questions before I close. Day high, day low provision in IVR. Kanaya Kumar is asking, day high, day low provision in IVR, IVP chart. I don't know, is that important? We can provide. I don't know how useful it is going to be. I'll check. So create, Pradeep Ji is asking, so create stocks and index strikes with high increase, decrease in call put over interest with time. Ms. Pradeep, can you explain it to me? I didn't understand what the requirement is. हाँ सर, अभी क्या है कि अभी हमने देखा था एक चार्ट जो निफ्टी का जुलाई अगस्त का 24,500 का पुट और कॉल का, तो उसमें क्या है कि सडन समथिंग 1 बजे के बाद वो कॉल का जो ओआई है वो सडन डाउन हो गया है. वो अभी पहले था 4 करोड़ था, वो सडन 3 करोड़ समथिंग प्लस. तो वो सडन 15-20 मिनट्स में वो सडन डाउन हो गया. तो वो हमको आइडिया नहीं रहता है कि किस कॉल में या ऑप्शन स्कैनर की बात करें, स्कैनर चाहिए ना. स्कैनर चाहिए सर. वो कैसा है कि वो आइडेंटिफाई होगा तो वैसा. तो हर एक चीज को ऑप्शन में समझ गया सर. स्कैनर, हाँ, पेंडिंग है स्कैनर, तो अभी रेडी तो नहीं है सर. स्कैनर पे काम तो चल रहा है, लेकिन काम तो चल रहा है.
अभी नहीं तो हम इधर आप ऑप्शन में स्कैनर का एक कर सकते हो कि आप खुद का स्कैनर क्रिएट कर सकते हो, तो वैसा कुछ स्कैनर स्टॉक और इंडेक्स का, तो वैसा भी एक। इनिशियली इनिशियली हम लोग प्री डिफाइंड स्कैनर्स देने वाले हैं सर। तो एग्जैक्टली ये जो आपने रिक्वायरमेंट बताया, तो आप एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट 15 मिनट हो या 30 मिनट 60 मिनट्स हो, तो उसमें कौन से स्ट्राइक्स में वाई सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है, या वॉल्यूम सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है, या प्रीमियम चेंज हुआ है, या तो ऐसा जो भी है इसके प्री डिफाइंड स्कैनर्स दे देंगे। फिर कस्टम स्कैन आगे आएगा, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हाँ। पहले प्रीडिफाइंड तो दे देंगे जो जो आप डायरेक्ट यूज कर सकेंगे इजीली। तो वो उसमें तो आपको आपका जो भी टाइम फ्रेम है, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसमें आ जाएगा आपको उस टाइम फ्रेम में कौन सा चेंज हो रहा है, 5 मिनट्स हो 15 मिनट्स हो जो भी हो। तो उस पे तो काम चल रहा है हमारा। तो कस्टम तो थोड़ा टाइम लगेगा सर, और कस्टम स्कैनर के लिए। ओके, तो वो उसमें सर हमको स्टॉक का भी इसमें स्टॉक और इंडेक्स का एक साथ ही दिखेगा क्या उसमें, क्या अलग अलग? हाँ हाँ, देखिए सेम पूरा कंबाइंड रहेगा। लेकिन वो हम्म। सिंबल लिस्ट रहेगा, तो उसमें आपको अगर आपके जो सिलेक्टेड आपको जो सिंबल्स है वही चाहिए, तो आप वो उसका लिस्ट बना सकते हैं। तो उसमें आप कर ले सकते हैं। तो वो पता है आपको, यहाँ पे मैनेज सिंबल लिस्ट में आपका आप लिस्ट बना सकते हैं सिंबल्स का। और फिर वो सिंबल लिस्ट आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे, तो सिर्फ वही दिखेंगे आपको। तो ये फॉर एग्जांपल निफ्टी का सेलेक्ट करेंगे, ओनली निफ्टी के स्क्रिप्ट्स आएंगे यहाँ पे। एक मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये निफ्टी के ओनली निफ्टी के स्क्रिप्ट्स दिखेंगे आप। तो वैसा फैसिलिटी हम लोग दे सकते हैं इसमें। तो आपके सेलेक्टेड स्क्रिप्ट्स आप कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट तो पूरा रहेगा, सारे के सारे एफएनओ स्क्रिप्ट्स रहेंगे उसमें। उसके ऑप्शंस क्या आ जाएंगे, तो बेसिकली ऑप्शंस का स्कैन रहेगा। तो सबसे ज्यादा ऑप्शंस में आप कौन से मूव हुए हैं, तो वो दिखेंगे। तो आपको बेटर रहेगा कि आप वो सिंबल लिस्ट बना के आप उस पर अगर करेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा हो जाते हैं ऑप्शंस सारे एफएनओ के। तो किसी भी इसका मोस्टली इंडेक्स के आ जाएंगे आपको, इंडेक्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो तो फिर उसके ही आ जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है ओके सर। जी। तो पहले प्री डिफाइंड देंगे, तो फिर आगे कस्टम स्कैन अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। प्री डिफाइंड तो काम चल रहा है उस पर स्कैन। सर ये ब्रोकर के साथ मर्ज कैसे किया जाता है एक्चुअली? ब्रोकर वो अपने ब्रोकर मतलब इसमें है, वो ब्रोकर के में मेरा अकाउंट है, लेकिन मर्ज कैसे कहता है ना, वो नहीं पता है। अच्छा, तो आपको अगर ये होगा या जो भी है, तो आप फॉलो स्टेप्स टू कनेक्ट टू ब्रोकर, ये क्लिक करके आप वो देख सकते हैं जो भी ब्रोकर हो आपका। तो ये उसमें दिखेगा। आपको हेल्प चाहिए तो आप ट्रेडिंग आवर्स में अगर आपको ग्रुप में पोस्ट करेंगे या डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करेंगे, तो मैं मेरे टेक्निकल पर्सन से कनेक्ट करवा दूंगा। तो वो आपको हेल्प करेगा उसको कनेक्ट करने के लिए। ओके। बेसिकली आपको एपीआई बनाना पड़ता है पहले, हाँ हाँ। आपके ब्रोकर के एपीआई डेवलपर साइट पे। ओके। तो फिर आप वहां से कर सकते हैं। तो ये आप इसमें यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है आपको कैसे करना है। हाँ। तो वो करके आप कर सकते हैं, या कोई भी आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प चाहिए तो हमको कांटेक्ट कीजिए मार्केट आवर्स में। हम हेल्प करेंगे, उसको कनेक्ट करवा देंगे उसको। ओके सर। ओके ओके, दैट्स इट। फिर एक मिनट